Good afternoon to all. Now I invite the speaker of this session, Shri A.K. Goyal, ex-Deputy General Manager, NTPC Limited. He is graduated in Power Engineering from Birla Institute of Technology and Science, Pilani, Rajasthan. He is certified in Project Management from Project Management Associate, Noida, and Risk Management from National Insurance Academy, Pune, and also Insurance Institute of India, Mumbai. He had 40 years of work experience in power sector, 26 years in thermal power sector, and 15 years in hydropower sector. He had rich experience of working in different department of thermal power plants in NTPC from 1986 to 2012. Since last decade, disseminating knowledge as visiting faculty at various engineering college, management institute, university located at NCR, National Power Training Institute at Faridabad, Shivpuri and Delhi, and various regional learning institute, etc. He will be addressing this session on topic Electricity Act 2003 and electricity reforms. Sir, I request you to kindly deliver your speech. Thank you. Thank you, ma'am. Thanks a lot. Thanks a lot. Shall I start? Yes, sir. Please, sir. Yes, sir. With your permission, I will just first of all, good afternoon, everyone. As introduction given by Madam, my name is Anil Kumar Goyal. I have a peculiar style of start. I always give a welcome slide. So, welcome to participants in the 5 days faculty development program, particularly on 20th October 2021. My topic would be Indian Electricity Act 2003 reforms and regulations. So I welcome you once again. Before I advance in the topic, I would like to share this slide which I prepared. Our Honorable Vice President, Mr. Venkaiah Naidu, who is from South India, what he says is use native tongue, speak English with foreigners. It means we must talk in Hindi. And similarly, our Honorable Prime Minister Narendra Modi, what he says is communicating an Indian language does not diminish India, it signals self-confidence. So you people are Indian, I am also Indian. So I prefer to talk with you in Hindi. You are from the Hindi speaking area. So they should not be much difficult. Although I would be covering all this in the communication would be my Hindi, but technical words I would recite in the English only. So with due permission, I would go ahead using rather in this way it is a mix, Hindi और English का mix रहेगा. So ये मेरा आपसे request है कि try to understand the things और मैं मुझको allow करिए. Thank you for this. मैडम जिन्होंने इंट्रोडक्शन दिया उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है. Now I am coming to the topic. So introduction to Indian Electricity Act 2003. So Indian Electricity Act 2003 is the basic. It is not the start of the act in India. First hydro project at Darjeeling established in 1897. In the British period, in 1897, the generation of the electricity was started. But later on, it was felt that some regulations, some rules are required to be framed so that the things are formulated in the way. So that's why this Indian Electricity Act 1910 came in the shape. So what is the necessity to provide basic framework for the Indian supply industry in India? As everybody knows कि किसी भी देश की प्रगति के लिए industry is the
वही आपका जीडीपी बढ़ाता है। तो इंडस्ट्रीज को एम्फेसिस करने के लिए, तो इंडस्ट्रीज का क्या है, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर में बेसिक है इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी को ध्यान में रखते हुए, इंडस्ट्रियल ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए हमको इलेक्ट्रिसिटी पर ध्यान देना था, इसलिए ये फ्रेमवर्क बनाना जरूरी था। ग्रोथ ऑफ दिस सेक्टर थ्रू प्राइवेट लाइसेंसेस, जो 1910 जो एक्ट बना, उसके अंदर ब्रिटिश ने कहा कि प्राइवेट लाइसेंस दिए जाएंगे। पर्टिकुलर जैसे मैंने बताया को आपको दार्जिलिंग टी स्टेट के अंदर फर्स्ट टाइम जो होता है, इसी तरह से और भी जगह जगह प्राइवेट लाइसेंसेस ने लाइसेंस लेकर के अपनी जनरेशन शुरू की। बाद में लाइसेंस बाय द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट मतलब प्रिंसली स्टेट, नॉट ओनली 1947 के बाद तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया, 1948 में स्टेट बने, लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टेट गवर्नमेंट मीन प्रिंसली स्टेट। Provision for license for supply of electricity in the specific area. The emphasis was for providing the provision the license for the Indian electricity to the specified area, which area is required, क्योंकि हर जगह पर हम इतना नहीं दे सकते थे, इतनी जनरेशन कैपेसिटी नहीं थी। तो लीगल फ्रेमवर्क फॉर लेइंग डाउन द वायर्स एंड अदर वर्क्स, द मेन मोटो फॉर द फ्रेमिंग ऑफ दिस इलेक्ट्रिसिटी एक्ट वाज था वायरिंग वगैरह के लिए जो आपका लीगल फ्रेमवर्क तैयार करना। Then provisionally laying down the relationship between licensing customer लाइसेंस के बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए, इसको एस्टेब्लिश करने के लिए दिस एक्ट केम इन 1910 दिस इज द ब्रिटिश पीरियड। बेसिक फ्रेमवर्क की जब बात करते हैं तो व्हाट इज बेसिक, तो इंडियन जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है इज ए कंकरेंट सब्जेक्ट एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर जो है इसको कंकरेंट सब्जेक्ट में डाला गया है, मतलब स्टेट एज वेल एज center both are responsible and both are to make the legislate. So both center and state can legislate, but in case of impungency central legislation prevails। मतलब यदि स्टेट और सेंटर के बीच में लेजिस्लेशन के अंदर कहीं कोई कॉन्ट्रडिक्शन होता है तो सेंटर का जो लेजिस्लेशन है दैट विल प्रिवेल। ये उसका ऑलरेडी उसमें लिखा गया है। 1948 के अंदर, 1947 में हमारा देश आजाद हो गया, फ्रीडम हो गया, तो उसके बाद 1948 के अंदर जो ब्रिटिश पीरियड के अंदर 1910 में इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट बना था उसको रिफाइन किया गया और दिस इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1948 केम इन द फॉर्म। इन द 1948 एक्ट इट वाज मैंडेटेड क्रिएशन ऑफ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। जितनी स्टेट बनी है उनको कहा गया कि हर स्टेट को अपना अपना इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड खोलना है। इट वाज मैंडेटेड। नीड फॉर द स्टेट टू स्टेप through the SEBs to extend electrification, so far limited to cities are electrified। अब ये था कि इतना तो जनरेशन हम कर नहीं सकते हैं, तो आपका जहां जिन पर हमको इंडस्ट्रीज है, पर्टिकुलरली जिन सिटीज हैं, वहां पर स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की परमिशन लेकर के और हम लोगों को प्लांट लगाने हैं। प्लांट लगा के जनरेशन होगा, उसके बाद ये लेजिस्लेशन उसमें आया। हालांकि इसके अंदर 1948 के बाद 1975 के अंदर अमेंडमेंट हुआ, जहां पर कि सेंट्रल सेक्टर आल्सो केम इन द फोर्स। टू बी प्रिसाइज 7th of November 1975 twin sister born, means NTPC and NHPC was took birth। 1975 के अंदर center was made responsible for generation of power। to be precise 7th November of 1975। एनटीपीसी का रेजिंग डे, एनएचपीसी का रेजिंग डे 7th नवंबर होता है। 1975 के अंदर ये अमेंडमेंट करके किया गया कि नाउ सेंट्रल शुड आल्सो टेक रिस्पांसिबिलिटी, क्योंकि स्टेट से हो नहीं रहा था, वो पेस नहीं आ रहा था। दैट्स व्हाई 1975 के अंदर इसमें अमेंडमेंट किया गया और ये कहा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल सेक्टर शुड आल्सो कम इन द पिक्चर। अमेंडेड टू ब्रिंग इन कमर्शियल वायबिलिटी इन द फंक्शन ऑफ द स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। और 1975 जो कि आ गया तो उन्होंने अमेंडमेंट में ये दिया गया कि आपके कॉमर्शियल वायबिलिटी को ध्यान में रखते हुए इंडियन, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स की फाइनेंशियल हेल्थ वाज पुअर, तो उसको करने के लिए उन्होंने सेक्शन 59 जो है उसको अमेंड किया और उसमें बोला कि मेक द अर्निंग ऑफ ए मिनिमम रिटर्न ऑफ 3% ऑन द फिक्स्ड एसेट एज ए स्ट्रेचुरी रिक्वायरमेंट विच फ्रॉम 1 अप्रैल 1985। तो 1985 से ये और फर्दर इसमें इंप्रूवमेंट हुआ। सेक्शन 59 के अंदर वहां कहा गया 3% रिटर्न ऑफ फिक्स्ड एसेट पर देना, जिससे कि वायबिलिटी रहे। It was further amended in 1991 to open generation to private sector। IPP जो इंडियन पावर प्लेयर्स है वो आप नाम दे सकते हैं, और रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर का गठन हुआ, मतलब दे आल्सो केम इन द शेप। तो 1991 is the turning history in rather my milestone in the
Electricity Act, where the 1991 the private player came in the picture for the setting up the power plant. So 1998 to provide for the private sector privatization the transmission. जो 98 में जब 91 के अंदर दे दिया गया कि प्राइवेट सेक्टर अपनी लगा सकते हैं, तो ये होगा कि एलोकेशन ऑफ पावर शुड आल्सो बी गिवन दिस टू. तो देन 1998 में द प्राइवेट सेक्टर्स को अलाउ किया गया कि दे कैन transmit also. So transmission utility of the private sector came into shape in 1998. This is the historical milestone बताया मैंने आपको. तो provision for setting up of Central Electricity Regulatory Commission to give powers to be determined. अब ये हुआ कि जब प्राइवेट प्लेयर भी रहेंगे, पब्लिक सेक्टर भी रहेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड भी रहेंगे, तो how this tariff would be differ? तो सोचा गया कि there should be a provision for the central as well as state electricity regulatory commission. They will regulate the tariff. So इसको determine करने के लिए, regulate करने के लिए, तो CERC और SERC came into force. Then Constitution of State Electricity Regulatory Commission optional for the state. At that time, it was optional for setting up the state SREC. But it was later on come in the mandated कि state electricity board को भी अपना SERC खोलना पड़ेगा. Initially it was this point कि नहीं सेंटर को तो खोलना है, सेंटर का कंट्रोल रहेगा, लेकिन स्टेट का मैंडेटरी नहीं, दिस ऑप्शनल है इनके लिए. Then distancing of government from tariff determination. अब गौर क्या था कि गवर्नमेंट अपने आप को इससे बचाना चाहती थी, it want to be aloof from this कि उन्होंने सेट किया. So रेगुलेटरी कमीशन को ये पावर दिया गया. They will decide. And Rao committee बैठी थी, Rao committee ने कुछ दिए थे, उसमें ABT सिस्टम था, ability based टैरिफ था, बहुत सी जो कि एसेट्स की डिप्रिसिएशन कैसे लेनी है, ये टैरिफ के जो फिक्सिंग के जो चार्जेस हैं, वो टाइम इस रेगुलेटरी कमीशन ने चेंज किए और इम्प्लीमेंट करवाए. अभी कहते हैं कि क्यों जरूरत है, बार बार इतने अमेंडमेंट, तो ऑस्कर वाइल्ड करके जिसने कहा कि द वन ड्यूटी वी ओ टू हिस्ट्री टू रीराइट इट. हमको बदलते रहना है हिस्ट्री को. मतलब ये है कि एक बार जो कर दिया वो फाइनल है, ऐसा नहीं होता है. लॉज एंड इंस्टीट्यूशंस आर कॉन्स्टेंटली टेंडिंग टू ग्रेविटी. लाइक क्लॉक्स दे नीड मस्ट बी ओकेजनली क्लीन्ड, वाउंड अप सेट टू द टाइम. So यदि आपने एक बार घड़ी लगा दी है, उसके बाद क्लीनिंग किया तो रुक जाएगी. यदि आपको ग्रोथ चाहिए, जैसे कहते हैं ना, परिवर्तन ही प्रकृति का शाश्वत नियम है, तो हमेशा परिवर्तन करते रहना चाहिए. परिवर्तन होता रहता है, प्रकृति द्वारा भी होता है, हमको भी करते रहना चाहिए. इसी तरह से हमको रीराइट करते रहना है. हमारी जो कमियां हैं उनको एनालिसिस करना है, एक्ट में क्या कमी है, क्या हमारी रिक्वायरमेंट है, क्या नेसेसिटीज है, एंड दैट कंसीडरिंग दोज lacunas or shortcomings, we should amend the act and amend the rules, amend the so that आपका देश काल और समय के हिसाब से आपका सामयिक रहे चीजें, रिलेवेंट रहे चीजें. तो हेनरी वाल्ड बूशर है, उसमें लिखा है laws and institutions are constantly tending to gravity. Like clocks, they must be occasionally cleaned, wound up, and set with time. So this is the back of mind कि why we should go for the amendments. तो amendment जो 2003 is the base actually, जो मैंने बताया 1910 then 1948. तो ये इसके बाद में 1997 75 बताया, then 1985 बताया. बट 2003 के अंदर एक बेस बनाया गया, रिप्लेस कर दिया 3 एक्ट को. फर्स्ट जो एक्ट था हमें इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जो 1910 था उसको, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट था जो 1948 का उसको, एंड इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन कमीशन जो 1998 में बना था. इन तीनों को अमलगामेट करके और एक्ट 2003 बनाया गया. तो हमारा एक तरह से मदर एक्ट जो है वो सब अमलगामेट हो जाने के बाद में 2003 है. इसके बाद भी बहुत से अमेंडमेंट हुए हैं, बहुत से इसमें चेंजेस हुए हैं. 2015 में भी इन्वाइट किया गया है, वो हम आगे बात करेंगे. लेकिन 2003 इज द बेस. तो आफ्टर अमलगामेटिंग द 1910, 1948 एंड 1998 दिस एक्ट्स. So this act was passed in the Lok Sabha on 9th of April 2003, and then in the Rajya Sabha the 5th of May 2003, and it was further notified on the 10th of June 2003. So after from the say 10th of June
2003 से ही हमारा इम्प्लीमेंट हो गया है, 2003 वाला एक्ट। इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। आप कहेंगे ये तो सोच समझ कर किया गया तो पूर्ण हो चाहिए, कभी कोई जो पूर्ण नहीं होती है। तो इसमें हमेशा धीरे से समय के हिसाब से नीतियां बदलनी चाहिए, बदली जाती है। तो इसमें कुछ लिमिटेशंस थी जो आज की डेट के अंदर स्ट्रक्चर के अंदर नीड फेल्ट किया गया। तो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स कैन नॉट मोबिलाइज द रिक्विजिट रिसोर्सेज। उसमें जो 2003 एक्ट है, इसमें इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट को मोबिलाइज करने के रिसोर्सेज मोबिलाइज करने के लिए कोई पावर नहीं। अब आपको स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की फाइनेंशियल हालत पता ही है। इफ दे आर नॉट एबल टू जनरेट द रिसोर्सेज, देन हाउ दे विल function, how they will improve, how will they implement. So ये किसमें लकूना है. So this teeth was given in further amendment. So private investors can all invest through the state electricity board. Private जो investors थे जिस स्टेट में ज्योग्राफिकली प्लांट की लोकेशन होती है, उन्होंने कहा था कि आप उनके थ्रू, उस स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. Then state electricity boards monopoly restricts competition and efficiency. और इन स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स की तो मोनोपोली को जो थी वो खत्म करना था, क्योंकि कंपटीशन जनरेट करना है. जब एफिशिएंसी और कंपटीशन की बात करेंगे तभी हमारा कंपिटिटिव रहेंगे. आज की डेट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड या कोई भी पब्लिक सेक्टर जब ये कंप्लेसेंट हो जाएगा कि भाई कुछ जरूरत नहीं है, तो जितने बनाऊंगा बिजली उतने में ही बेचूंगा, तो इसका मतलब ये है कि आपका ग्रोथ रुक जाएगा. तो आगे भी आपको एफिशिएंसी इंप्रूव करनी है, तो देयर शुड बी ए कंपटीशन. और इसके अंदर प्रोविजन जो है ऐसा नहीं था कि इनको इंडियन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को एक तरह का मोनोपोली था, वो रिस्ट्रिक्ट करता था कंपटीशन के लिए भी एंड एफिशिएंसी के लिए. दैट इज व्हाई 2003 नीडिंग द फर्दर अमेंडमेंट. इन एडुकेट कंसर्न फॉर द कंज्यूमर. कंज्यूमर के लिए भी कोई ग्रीवेंस को एड्रेस करने के लिए कुछ खास नहीं था. मींस इनएडुकेट कंसर्न था कंज्यूमर के लिए, जो कि आपका कंज्यूमर गॉड जैसा कहा जाता है आजकल कमर्शियल टर्म के अंदर. कंज्यूमर की यदि आपने नीड को एड्रेस नहीं किया कैटर करने के लिए, तो कंज्यूमर व्हाई विल कम टू यू, व्हाई ही विल डिपेंड ऑन यू. तो इसलिए इसको ये और देना जरूरी था. इनएडुकेट कंसर्न था इसमें कंज्यूमर के लिए. इस फर्दर एनहांसमेंट अमेंडमेंट. तो अब ये बात आती है व्हाई द एक्ट जब था, तो क्यों एक्ट था? फॉर टेकिंग मेजर्स कंड्यूसिव टू द इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री. हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री है उसको कंड्यूसिव बनाना था. कंड्यूसिव का मतलब इंडस्ट्रियल ग्रोथ के हिसाब से मैच नहीं कर रही थी. आपको लोड शेडिंग करना पड़ता. जहां इंडस्ट्रीज आती थी वहां पर इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं थी तो वो इतना ज्यादा लोड होता था कि आपको लोड शेडिंग करनी पड़ती थी. तो आपको ना ये कंड्यूसिव करने के लिए एक्ट की जरूरत थी, जिससे कि यूनिफॉर्मिटी रहे, आपका रेशनलाइजेशन हो जाए तो इलेक्ट्रिक टैरिफ के अंदर. दूसरा कंपटीशन प्रमोट हो. थर्डली एंश्योरिंग ट्रांसपेरेंट पॉलिसी रिगार्डिंग सब्सिडीज. जो सब्सिडी दी जाती है वो उसमें एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए. तो ट्रांसपेरेंट पॉलिसीज यदि नहीं होंगी तो आपको किसी स्टेट को कुछ सब्सिडी मिल रही है, किसी स्टेट को कुछ मिल रही है, सो दिस बहुत प्रॉब्लम रहेगा. तो प्रोटेक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर. अब सबसे बड़ी बात ये थी कि इस एक्ट के अंदर जो है कंज्यूमर के लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं थी. तो दिस वाज फेल्ट कि आपको कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए. प्रमोशन ऑफ एफिशिएंट एनवायरनमेंट फ्रेंडली पॉलिसीज. एक और खास बात जो पर्टिकुलरली रही वो ये था कि एफिशिएंसी की बात करते हैं, कंपटीशन की बात करते हैं, तो आपको प्रमोट करना पड़ेगा. उसको प्रमोट तब होगा जब आप एक प्लेटफॉर्म पर ट्रांसपेरेंट पॉलिसीज बनाएंगे. एज वेल एज एम्फेसिस वाज गिवन फॉर द एनवायरनमेंट फ्रेंडली पॉलिसी. एनवायरनमेंट फ्रेंडली क्योंकि आपके एनवायरनमेंट को हैजार्ड हो रहा है, आपका ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, तो दिस वाज ग्लोबली ये डिसाइड किया गया कि जो आपके जो थर्मल पावर प्लांट पर्टिकुलरली हैं, इनसे आपका जो पॉल्यूशन है, एनवायरनमेंट पॉल्यूट हो रहा है, इसको किस तरह से सोचा जाए, किया जाए. नंबर 2, इसके पीछे एक और यह था कि आपका एनर्जी कंजर्वेशन, कि आप एनर्जी सेव इज एनर्जी जनरेटेड. तो इंस्टेड ऑफ एडिंग मोर एंड मोर प्लांट और मोर जनरेटिंग कैपेसिटी as well as not plugging the loopholes for the theft or the losses, means you keep on going adding, or then you would not be the sufficient power would be not available. So that's why energy conservation also came in the
mind that this should be a part of policy. So Energy Conservation Act, although it was separate act, but emphasis is given keeping in mind the environment, conservation, and efficiency, to promote the efficiency. This is the thought behind the this 2003 जो एक्ट है, this sets the blueprint for the power sector reforms in India. तो एक तरह का है कि यह रिफॉर्म्स जो है ट्रूली स्पीकिंग जो है 2003 से शुरू हुई पावर सेक्टर के अंदर। जैसे मैंने बताया 98 के अंदर आपने ट्रांसमिशन को प्राइवेटाइज कर दिया, 1975 के अंदर आपने सेंट्रल पावर सेक्टर को ऑथराइज कर दिया, दे शुड कम इनटू दी फॉर द टेक पार्ट फॉर द पावर जनरेशन। वो टाइम टू टाइम जो थी उन सबों को ये था कि एक है ना इंडिया के अंदर यदि देखा जाए तो रिफॉर्म का जो पीरियड है वो इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर पावर सेक्टर के अंदर 2003 माना जाता है। दैट्स व्हाई द इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 इज वेरी प्रोमिनेंट एक्ट, will send important signal to domestic and international financial communities. अभी क्या है कि इस एक्ट के अंदर प्रोविजन दिया गया कि आप है ना, अब क्योंकि पैसा आपके पास है नहीं तो आप वर्ल्ड बैंक से है, एशियन डेवलपमेंट बैंक से, वहां से भी बोरो करना है तो आप वहां से भी बोरो करके प्लांट लगा सकते हो। जब आपने इनको खोल दिया कि प्राइवेट प्लेयर्स भी इसमें कर सकते हैं, तो प्राइवेट प्लेयर्स जरूर नहीं है अपनी सारी पूंजी लगाए। हो सकता है इंटरनेशनल फाइनेंस के रिक्वायरमेंट हो सकता है कि वो इक्विटी शेयर के रेशियो के अंदर यहाँ से डोमेस्टिक फंड कलेक्ट करे। तो दिस वाज ए नीड वाज फेल्ट कि ये डोर भी खोलना पड़ेगा हमको, क्योंकि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फाइनेंशियल कम्युनिटीज को ये सिग्नल देना चाहिए कि पावर सेक्टर के अंदर यदि आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप वहां से फंड ले सकते हैं। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अट्रैक्ट्स एडिशनल इन्वेस्टमेंट टू बूस्ट द इंडियन इकोनॉमी। अब क्या है कि जब आपका इसमें इन्वेस्टमेंट होगा तो नेचुरली आपके शेयर, आप पब्लिक शेयर निकालेंगे तो आपका इकोनॉमी जो इंडियन इकोनॉमी ग्रो करेगा। तो दिस वाज आल्सो इन्वेस्टमेंट के लिए एक आपको एडिशनल मिल रहा है कि पावर सेक्टर में जैसे एनटीपीसी के, एनएचपीसी के या प्राइवेट प्लेयर्स के भी, जिनके भी जब शेयर मार्केट पब्लिक इश्यूज आते हैं तो इकोनॉमी डेफिनेटली ग्रो करती है। तो दिस इज आल्सो कि आपका ओवरऑल जो है इंडियन इकोनॉमी ग्रो करेगी इफ यू अलाउ दिस इन्वेस्टमेंट, एडिशनल इन्वेस्टमेंट। तो विल रिलीव द स्ट्रेस्ड फाइनेंशियल पोजीशन टू ग्रो। तो इंडियन जो हमारी इंडिया की जो स्टेट्स हैं जो फाइनेंशियली बर्डन थी, जिनकी हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ डेटेरिएट हो रही थी या बहुत खराब चल रही थी, उनको एक फाइनेंशियली स्ट्रेस नहीं रहेगा, क्योंकि दे नीड नॉट टू फाइनेंस, देयर आर अदर सोर्सेज अवेलेबल फ्रॉम वेयर द फाइनेंसिंग कैन बी मेड अवेलेबल। सो ये स्ट्रेस्ड फाइनेंशियल पोजीशन जो है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को उससे बाहर निकाल रखा है, मतलब ओपनिंग द डोर फॉर investment by the domestic as well as international financial communities. तो ये इसका जो तीन है इसका कॉन्स्टिट्यूशन था, इसमें सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, देन रेगुलेटरी कमीशन, देन अपीलेट अथॉरिटी। अभी तक कंज्यूमर जो है यदि आपका कोई भी आपने डिसीजन दिया और फिर कमीशन ने और देयर इज ए ग्रीवेंस फ्रॉम द कंज्यूमर, तो उसको रिड्रेस करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, तो देन एक अपीलेट ट्रिब्यूनल को भी डालना पड़ा कि आप अपील कर सकते हैं उस ट्रिब्यूनल के पास। सो दिस आर द थ्री अथॉरिटीज जो कि आपको फैसिलिटेट करती थी। तो एक्ट जो 2003 था, जिसे लॉ रिलेटिंग टू व्हाट, फर्स्ट इज द जनरेशन, अनदर द ट्रांसमिशन एरिया, थर्ड इज द डिस्ट्रीब्यूशन एरिया, फोर्थ इज द ट्रेडिंग एरिया, एंड देन यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आप कहाँ यूज कर रहे हैं उसको। सो दीज आर द बेसिकली 4 एरियाज, एंड फिफ्थ इज द जनरली where the electricity is to be used। तो आपका जो लॉ थे जनरेशन के लिए बनाए गए, ट्रांसमिशन के लिए बनाए गए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बनाए गए, एंड ट्रेडिंग के लिए कि आप अपने मर्जी से कैसे बेच सकते हैं और कैसे कोई कंज्यूमर खरीद सकता है। सो दिस द लॉ वाज रिक्वायर्ड। आप देखेंगे तो इसमें मैंने ये कर रखा है पॉलिसी किसके अंडर है, ये सेंटर का है, ये तो अब स्टेट का है। तो आपका मिनिस्ट्री ऑफ पावर है सेंटर के अंदर पॉलिसी मेकिंग, स्टेट के अंदर आपकी स्टेट गवर्नमेंट है। देन प्लान जो है वो पहले सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी करती है, रेगुलेशन जो है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन कमीशन करता है, एंड सीएससी करते हैं तो अपीलेट कमीशन। देन एससीआरसी है स्टेट के है क्या। जनरेशन जो है आपके सेंट्रल जनरेटिंग यूनिट हुए लाइक जैसे एनएचपीसी, एनटीपीसी, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, जो तीन सेंट्रल पीएससीज है वो हो गया। देन
आपके जनरेशन कंपनीज हो गई, आईपीपी हो गए, आपके जो इंडिपेंडेंट प्राइवेट प्लेयर्स हो गए, पावर प्रोवाइडर्स जो हो गए, ये हो गया। देन ट्रांसमिशन जो है आपका सेंटर के हो गए, ये स्टेट के हो गए। तो ट्रांसमिशन लाइसेंस इनको दिया गया, स्टेट की तरफ से इनको दिया गया। सिस्टम जो है एनएलडीसी आपका लोड डिस्पैच सेंटर है, एक तो नेशनल का है, एक रीजनल का। रीजनल जो है 5 रीजन बांटा, ईस्टर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन, साउदर्न रीजन और नॉर्दर्न, नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट साउथ एंड देन सेंटर। तो आपका आरएलडीसी रीजनल बन गए। ये स्टेट की तरफ से, स्टेट के एसएलडीसी हो गए। डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सेंटर के पास नहीं, सेंटर ने यहाँ खत्म कर दिया, ये डिस्पैच सेंटर देने के बाद खत्म। स्टेट का बन जाता है कि डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लाइसेंस देगा, देन ट्रेडिंग के लिए लाइसेंस देगा सेंटर भी, सेंटर के उसके लिए अभी, और ट्रेडिंग लाइसेंस देगा स्टेट भी देगा। एंड अपील के लिए अपीलेट ट्रिब्यूनल है, स्टेट में नहीं है, तो सेंटर का ये देगा। तो ये प्राइवेट जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज इन अहमदाबाद, कोलकाता, मुंबई, सूरत, ये केम इन दी आईपीपी, मतलब ये दे केम इन दी picture and they started generating, they started establishing the power plant. So this need was felt in to this. अभी जो 2003 का जो एक्ट है, बेसिकली जैसे गीता में 18 अध्याय हैं, वैसे 18 चैप्टर हैं इसके, 18 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट के अंदर प्रिलिमिनरी है जो बताया गया है, देन नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी एंड प्लान के बारे में है, थर्ड पार्ट के अंदर जनरेशन इलेक्ट्रिसिटी के बारे में है, देन फोर्थ में लाइसेंसिंग के बारे में है, फिफ्थ के अंदर ट्रांसमिशन इंटर स्टेट एंड इंटर स्टेट के बारे में है, देन नेक्स्ट सिक्स जो है डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिसिटी के बारे में है, सेवेंथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टैरिफ, एंड देन एट वर्क्स एंड नाइन्थ ऑफ द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, and 10th is the regulatory commission, 11th is the appellate tribunal for electricity, then 12th is the investigation enforcement, 13th is the reorganization of the board, then 14th is the offences and penalties. Offences penalties डिसाइड किया जाता है कि आप है ना कोई चोरी करके पकड़ते हैं तो व्हाट द पेनल्टी, एंड फर्स्ट ऑफेंस के लिए, सेकंड ऑफेंस के लिए, वो अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में हम लोग कवर करने वाले हैं। देन स्पेशल कोर्ट्स, आपके कंज्यूमर कोर्ट्स होते हैं, आप वहां भी जा सकते हैं। देन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कैसे होगा, क्योंकि कंज्यूमर फ्रेंडली बनाना था इसको, ज्यादा कंज्यूमर ओरिएंटेड नहीं था। कंज्यूमर में कुछ चूंकि जैसे अभी कंज्यूमर की नीड को कैटर करने के लिए, कंज्यूमर के ग्रीवेंस को एड्रेस करने के लिए, कंज्यूमर के डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए दिस चैप्टर्स वर एडेड। एंड 17th इज द अदर प्रोविजन, प्रोटेक्शन क्लास, प्रोटेक्टेड क्लास थी, एंड 18th इज द मिसलेनियस शेड्यूल एंड एनैक्टमेंट। तो ये टोटल 18 चैप्टर है, 18 पार्ट है इस टोटल एक्ट के। तो सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रिपेयर नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी इन कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट। तो प्लानिंग कमीशन जो है उसके पास जो है नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी बनेगी, और गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की कंसल्टेशन के साथ क्या क्या है, किस एरिया में किस तरह से रहेगा। द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल फ्रॉम टाइम टू टाइम prepare the national electricity policy including tariff policy. इसमें मैं खाली पॉलिसी नहीं, tariff policy भी included है, in consultation with the state government and the authority for development of the power system based on the optimal utilization. पावर डेवलपमेंट के लिए किस एरिया में पावर डेवलप कर रहा है, ऐड करना है पावर प्लांट, ये डिस्कस किया जाएगा। व्हाट वुड द बेसिस ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन रिसोर्सेस, जिससे कि जो आप वहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो। ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन रिसोर्स है इंक्लूडिंग कंजर्वेशन देयर ऑफ, यहां पर एनर्जी कंजर्वेशन को भी जोड़ दिया गया, ये कंजर्वेशन भी देख रहा है, नॉट ओनली जनरेशन, वी हैव टू बी कॉशियस अबाउट द एनर्जी कंजर्वेशन एज वेल। देयर आर मैनी यूज ऑफ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, और कहां हमको रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज अवेलेबल है, जहां पर को हमको रिन्यूएबल सोर्सेज को एक्सप्लोर करना है और वहां लगाना है। तो दिस इज द नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी के तरह। तो यदि हम देखेंगे तो द अथॉरिटी में रिव्यू और रिवाइज द नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान। प्लान जो है, जो अभी तो खैर डिसबैंड कर दिया, उसको नीति आयोग बना दिया। पहले जो प्लानिंग कमीशन था वो उसके ऊपर प्लान करता था कि 5 ईयर पॉलिसी में
और का 12th प्लान, 13th प्लान है, तो उसमें 5 ईयर प्लान में क्या करेगा, कौन कौन से एरियाज है जहाँ पर कि आपका कोल्ड रिजर्व अवेलेबल है, वाटर रिसोर्स अवेलेबल है थर्मल प्लांट के लिए, और एल्स आपका कोस्टल एरिया पर कहाँ पर कर सकते हैं, या इंपोर्ट करना है तो पोर्ट कहाँ अवेलेबल है। इसके इस तरह से आपका एक UMPP अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट की पॉलिसी आई थी, वो हम लगाएंगे, जिसके अंदर ये कंडीशन था कि 4000 मेगावाट का प्लांट होना चाहिए मिनिमम, और सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी पे चल रहा है। अभी आप लोगों की क्लास मोहित गुलाटी ने उन्होंने जो लिया सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी पे, तो सुपर क्रिटिकल डेफिनेटली एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस एडेड फीचर है, इसलिए इसकी पहली कंडीशन है कि UMPP मस्ट बी ऑफ 4000 मेगावाट। यूनिट साइज कुछ भी हो सकता है, 500 मेगावाट की लगाएं, चाहे 600 की लगाएं, चाहे 800 की लगाएं, चाहे 1000 की। अभी तो NTPC 1000 मेगावाट में जा रही है, BHEL बना रहा है इसको, 8000 तो ऑलरेडी NTPC कई जगह लगाया हुआ है। और लेकिन जब सुपर क्रिटिकल वाले थे तो 500 में टेक्नोलॉजी में अवेलेबल नहीं है, 60 से अवेलेबल है। तो आपको उस हिसाब से आपको यूनिट साइज बदल सकते हैं, लेकिन मिनिमम जो है जनरेटिंग कैपेसिटी 4000 होनी चाहिए। और सेकंड कंडीशन उसकी ये है कि आपका सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। तो प्रोवाइड मैनेजमेंट ऑफ रूरल डिस्ट्रीब्यूशन। अभी क्या था कि जो डिस्ट्रीब्यूशन था पहले इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के पास था। जब हम बात कर रहे हैं कि हमको पूरे देश को इलेक्ट्रीफाई करना है, तो हमको रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन पे भी एम्फेसिस करना पड़ेगा। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए अनलेस एंटिल देयर इज ए पॉलिसी फ्रॉम द गवर्नमेंट के पंचायत को, कोऑपरेटिव सोसाइटी को, NGOs को या फ्रेंचाइजी देकर के इनको नहीं जोड़ा जाएगा, तो रूरल में इलेक्ट्रिफिकेशन या रूरल से रेवेन्यू कलेक्शन वो भी डिफिकल्ट। सो इसके अंदर जो है रूरल डिस्ट्रीब्यूशन जो है पंचायतों के पास दे दी गई, कोऑपरेटिव सोसाइटी बना दी गई, NGOs बना गए, एंड फ्रेंचाइज दे दी गई कि आपको जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी है जो रूरल इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन वाले जो बनाएंगे आपके राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण जो था उसमें, या वन हट वन बल्ब का था एक कंसेप्ट कि हर घर के अंदर, हर कुटीर के अंदर एक बल्ब होना चाहिए, तो उसका बिजली का ये करने के लिए ये पंचायतों को और कोऑपरेटिव सोसाइटी को रेस्पॉन्सिबिलिटी एरिया हमारे सेंटर है, रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर है ये। द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल एंडेवर टू सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी टू ऑल एरियाज इंक्लूडिंग विलेजेस एंड हैमलेट्स। अल्टीमेट एम क्या है? एम वहां से चला था 1910 के अंदर, जिसमें एक्ट बना था कि हमको सिटीज को देना, वो सिटी में भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, और वो सिर्फ प्रिंसली स्टेट वाले लोग को दिलाते थे। या जैसे मैंने बताया कि 1897 के अंदर सबसे पहले आपका दार्जिलिंग में आया था, टी स्टेट के अंदर हाइड्रो पावर पर, तो वो एक सेलेक्टिव एरिया था जहां पर जिसको चाहिए था वो सबसे सेलेक्ट कर दिया। लेकिन slowly it became the necessity or it has become the policy, it has become from the government that के आपको इलेक्ट्रिसिटी जो है हर गांव को, हर घर को पहुंचानी है, घर घर में बिजली होनी चाहिए। Not only village but every house, every hamlet should have at least one bulb. तो ये मैं जो बताया था पहले अभी लास्ट स्लाइड के अंदर जो एम्फेसिस दिया गया था उसमें जनरेशन है, ट्रांसमिशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, पावर रेटिंग है। तो जनरेशन को हम लोग डिस्कस करते हैं। जनरेशन एरिया में हमको क्या करना है? तो जनरेशन का मतलब है डी लाइसेंस्ड एंड कैप्टिव जनरेशन फ्रीली परमिटेड। तो इस एक्ट के अंदर जो है फ्रीली परमिट कर दिया गया, इनको जो जनरेशन के लिए लाइसेंस देना पड़ता या कैप्टिव पावर के लिए ये फ्रीली परमिट कर दिया गया। आपको ज्यादा फॉर्मेलिटीज नहीं है, आपको लगाना है, अप्लाई करिए ना, आपको मिल जाएगा। मतलब जो कोटा परमिट और जो सब लाइसेंस की थी उनकी बहुत कम्बरसम प्रोसीजर को सिंप्लीफाई किया। तो दैट्स व्हाई पीपल मोर एंड मोर पीपल कैन ऐड जनरेशन टू दी कंट्रीज रिक्वायरमेंट। तो एनी जनरेटिंग कंपनी में एस्टेब्लिश लगा सकती है प्लांट, ऑपरेट एंड मेंटेन ए स्टेशन विदाउट ऑब्टेनिंग ए लाइसेंस अंडर दिस एक्ट। एक्ट में कहा गया कि आपको लाइसेंस की जरूरत नहीं, आप अपने से आप लगा सकते हैं इफ इट कंप्लाइज विद द टेक्निकल स्टैंडर्ड रिलेटिंग टू कनेक्टिविटी द ग्रिड। बस कंडीशन क्या है कि आपका टेक्निकल स्टैंडर्ड जो है वो होने चाहिए जिससे कि आपको ग्रिड से कनेक्टिविटी मिले। तो सेक्शन 73 क्लॉज बी के अंदर जो है वो ग्रिड की कनेक्टिविटी को उन्होंने माना कि ग्रिड की कनेक्टिविटी के स्टैंडर्ड के हिसाब से आप बनाए। तो ग्रिड की कनेक्टिविटी क्या है? आपका फ्रीक्वेंसी जो है 50 साइकिल्स होनी चाहिए,
बहुत एक टॉलरेंस दिया हुआ है कि प्लस माइनस इतने, अदरवाइज 50 साइकिल्स। तो मेड जो है ग्रिड जो ट्रिप कर जाता है या बैलेंसिंग नहीं होता है बिकॉज ऑफ इरेशनल और वो कहते हैं ट्रैफिक कंजेशन ऑफ दिस। तो आपका ट्रैफिक कंजेशन नहीं करना, ट्रैफिक कंजेशन करना, आपकी फ्रीक्वेंसी सही होनी चाहिए, तो वो जनरेट कर देगा। मतलब टेक्निकल स्टैंडर्ड जो है उनको फॉलो करते हुए आपका ग्रिड पर कनेक्ट हो जाए, तो बस दैट्स ऑल। आपको सिंपल परमिशन चाहिए, इस एक्ट के हिसाब से लाइसेंस की आवश्यकता नहीं। और हाइडल प्रोजेक्ट लगाने के लिए नीड्स स्टेट गवर्नमेंट अप्रूवल, क्योंकि ये इसमें बहुत सा एनवायरमेंटल इफेक्ट रहता है। फिर नंबर 2 इसके अंदर रिहेबिलिटेशन एंड रूरल रिहेबिलिटेशन बहुत ज्यादा होता है। इसलिए ये जो पावर है हाइडल प्रोजेक्ट सेटअप करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया। तो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट से आपको क्लियरेंस लेना है। तो आपका सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी से टेक्निकली और स्टेट से लेना है कि हाँ फॉरेस्ट क्लियरेंस, वाटर क्लियरेंस, ये सब चीजों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपका हाइड्रो के लिए आपका ये अप्रूवल चाहिए। तो पहले आप करना अप्लाई करें गवर्नमेंट पर, और आपको ध्यान में रखते हुए कि आपका कोई एनवायरमेंटल वो इशू नहीं है, कोई फॉरेस्ट क्लियरेंस की योजना कर देगा, तो आप ना इन सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी पर हमने प्रपोजल भेज देंगे, वो अप्रूव कर देंगे, तो यू कैन सेट अप योर हाइडल प्रोजेक्ट इन द स्टेट। तो एवरी कंपनी रेफर टू इन सबस्टेशन 1 shall prepare and submit to the authority for concurrence। आप पहले अपना प्लान जो है concurrence के देंगे। A scheme estimated to involve the capital expenditure, कितना उसको खर्चा आएगा ये बताएंगे। Exceeding such sum as may be fixed by the central government from time to time by notification। तो ये अपना लिमिट के कितने अमाउंट तक का आपको देना है, ये आप जो अपना एस्टिमेट होगा ये टाइम टू टाइम जैसे एस्केलेशन होता है वैसे मार्केट के हिसाब से जैसे इन्फ्लेशन होगा वो सबसे टाइम टू टाइम ये जो लिमिट एक्सपेंडिचर की कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना कर सकते हो इसकी लिमिट टाइम टू टाइम चेंज होती रहेगी, उसके हिसाब के अंदर जो है तो आपको परमिशन मिल जाएगा। आई विल जस्ट वंस अगेन रीड। Every company referred to in substation shall prepare and submit to the authority for concurrence। concurrence के लिए सबमिट करना अपना प्लान प्रिपेयर करके, और जो आपको स्कीम है उसका एस्टिमेटेड कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होगा ये बताना है। वो जो एक्सपेंडिचर वो जो गवर्नमेंट ने जो सीलिंग रखी हुई है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, और वो सीलिंग जो है टाइम टू टाइम सीइंग द मार्केट इन्फ्लेशन बदलता रहेगा, ये मतलब है। अब सेकंड है कि इसमें लाइसेंसिंग की क्या, तो नो पर्सन शेल ट्रांसमिट, ये है ट्रांसमिशन के लिए। तो नो पर्सन शेल ट्रांसमिट इलेक्ट्रिसिटी, डिस्ट्रीब्यूट इलेक्ट्रिसिटी, अंडरटेक ट्रेडिंग इन इलेक्ट्रिसिटी अनलेस ए लाइसेंस इज ऑब्टेन्ड। लाइसेंसिंग जो थी ये क्यों लगाई गई थी कि अब लाइसेंस लोगे तभी आप अपना इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो और ट्रेडिंग कर सकते हो। इसको लाइसेंसिंग से मतलब है ये। बाद में जो ट्रांसमिशन की जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको उन्होंने क्या किया, ट्रांसमिशन टू बी गवर्नमेंट कंपनी एट द सेंटर एंड स्टेट लेवल बोथ विद रिस्पांसिबिलिटी फॉर प्लान एंड कोऑर्डिनेट डेवलपमेंट ऑफ द ट्रांसमिशन नेटवर्क। आपका सेंटर और स्टेट का जो है जो क्योंकि आपका एवोक्यूशन ऑफ पावर जो है वो आपके ट्रांसमिशन लाइन के साइज पे डिपेंड करता है, किस साइज के कंडक्टर है। आप कहीं पर ऐसी जगह लगा रहे हैं जहाँ ऑलरेडी कैपेसिटी फुल है, तो वो इसको मतलब या तो उसको एनहांस करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा ट्रांसमिशन लाइन को, और दूसरी पैरेलली एक और लाइन डालनी पड़ेगी। सो दिस इज ट्रांसमिशन का जो है कंपनी जो सेंटर स्टेट जो है बोथ रेस्पॉन्सिबल है फॉर प्लानिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द ट्रांसमिशन नेटवर्क। कैसे ट्रांसमिशन नेटवर्क को और बढ़ाया जाए या उसको अपग्रेड किया जाए। प्रोविजन फॉर प्राइवेट ट्रांसमिशन लाइसेंसेस। इसके बाद ये हुआ कि भाई गवर्नमेंट जो है जनरेशन के लिए पैसा नहीं निकाल पा रही है। When we have allowed the private players to establish their own generating plant, so why we should not open this door for the private company for the transmission? So this provision कर दिया गया कि आप प्राइवेट कंपनी भी ट्रांसमिशन का लाइसेंस लेकर के ट्रांसमिशन लाइन डाल सकती है। तो ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर, regional load dispatch center on the basis of the region wise demarcation of the country and state load dispatch center। ये आपको टोटल की आपकी इंटर स्टेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए, एक ग्रिड से दूसरे ग्रिड, एक मतलब रीजनल से दूसरे रीजनल तक। जैसे वेस्टर्न ग्रिड है तो नॉर्दर्न से कनेक्ट होनी चाहिए, नॉर्दर्न है वो साउदर्न से कनेक्ट होनी चाहिए, मतलब इंटरचेंजेबल होना चाहिए। एक जगह यदि लोड ज्यादा है कम है तो आप उसको कर सकते हैं।
पास कर सकते हैं उनको। द टेक्निकल स्टैंडर्ड ऑफ O&M, ऑपरेशन मेंटेनेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन्स, टू बी मेंटेन्ड अकॉर्डिंग विद द ग्रिड स्टैंडर्ड स्पेसिफाइड। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी डिसाइड करेगी कि ग्रिड के स्टैंडर्ड क्या रहेंगे, उसको स्पेसिफाइड करते हुए आपको उसको ट्रांसमिशन लाइन का ऑपरेट करना है और मेंटेन करना है। मतलब जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने जो ट्रांसमिशन के लिए गाइडलाइन बनाई है, स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं, ग्रिड स्टैंडर्ड, उसके हिसाब से भी आपकी लाइन है और उस तरह से आप ऑपरेट कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, तो उन टेक्निकल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से मेंटेन कर रहे हैं, देन यू आर अलाउड टू go for the private transmission. Open access in transmission with provision of surcharge for the taking care of current level of subsidy. आपका जो ओपन एक्सेस है जो ट्रांसमिशन लाइन के लिए, वो सब्सिडी पे डिपेंड करता है, आपको कितनी गवर्नमेंट से सब्सिडी मिलेगी वो कर सकते हैं। देन डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसेस वुड बी फ्री टू टेक जनरेशन। अब ये क्या हुआ कि जो जनरेट कर रहा है वो आपको डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकता है, ये भी इन्होंने कंडीशन रहा थी। जनरेट कर रहा है तो जो सरप्लस होगी उसकी नीड्स है तो वो यदि बेचना चाहेगा तो बेच सकता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसेस वुड फ्री टू टेक जनरेशन। उल्टा भी कर सकते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस पर वो जनरेशन प्लांट भी ला सकते हैं। तो जनरेटिंग कंपनीज आर फ्री टू टेक डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस। तो जनरेटिंग कंपनी जो है डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस ले सकती है, या जिनके पास डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस है वो जनरेटिंग स्टेशन लगा सकते हैं। ये मतलब एंट्राइल है, दोनों से जिसके पास जो है दूसरा कर सकता है। तो प्रोविजन फॉर लाइसेंस फ्री जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन रूरल एरियाज, तो आपका लाइसेंस की जरूरत ही नहीं है यदि आप रूरल एरियाज में जनरेशन कर रहे हैं और वहां पर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। जैसे वाले आपका लेह एरिया है या आपका अंडमान निकोबार है या आइलैंड जितने भी है, और या कोई ऐसे इंटीरियर जगह पर या रूरल आपके ट्राइबल एरियाज के अंदर जहां पर आप अपना घर में बिजली पहुंचाना चाहते हैं तो आप अपना जनरेटिंग प्लांट भी लगा सकते हैं। तो जनरेटर प्लांट लगाते हैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन है तो जनरेट कर सकते हैं। तो प्रोविजन फॉर पेमेंट ऑफ सब्सिडी थ्रू बजट। अब ये जो सब्सिडी है वो बजट में प्रोविजन रखना होगा, उसके हिसाब से दिया जाएगा, क्योंकि ये आपका जब भी आपका बजट होता है उसमें एलोकेट करना पड़ता है कि हाउ मच वी आर गिविंग टू विच सेक्टर। आपका जो इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में कितना देंगे, सब्सिडी के थ्रू कितना देंगे और वैसे कितना देंगे। तो जो भी सब्सिडी है गवर्नमेंट जो पेमेंट की सब्सिडी होती है वो बजट में प्रोविजन करना पड़ेगा, जिससे ऐसा नहीं हो कि बाद में सब्सिडी के लिए जब डिमांड कर पता लगा तो बजट की प्रोविजन नहीं है, इसलिए आपको पेमेंट नहीं हो रहा, तो आपने काम करवा लिया, पैसा देने के काबिल नहीं, आप पैसे नहीं दे पा रहे हैं, तो ये आपने प्रॉमिस किया कि ये कर दो हम आपको सब्सिडाइज करेंगे, तो सब्सिडी मिल नहीं रही क्योंकि आपने बजट में प्रोविजन किया था। तो ये कंडीशन है कि आपको प्रोविजन करना पड़ेगा जो आप सब्सिडी की पेमेंट है उसमें बजट के अंदर। यदि वो बजट में प्रोविजन है तो आप है ना आराम से उसको पे कर पाएंगे। और रूरल एंड रिमोट एरियाज स्टैंड अलोन सिस्टम फॉर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन परमिटेड। तो रूरल और जो रिमोट एरियाज में वहां पर आप ना खाली जनरेशन भी कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं, इस तरह का आपको अलग स्टैंड अलोन भी अरेंजमेंट कर सकते हैं। डिसेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू पंचायत कोऑपरेटिव एंड बेंचेस वुड बी परमिटेड। और आगे फर्दर बोल दिया कि ये डिस्ट्रीब्यूशन को डिसेंट्रलाइज कर देंगे, पंचायत को कह देंगे आप रेवेन्यू इकट्ठा करो, या फ्रेंचाइजीज को बोल देंगे या कोऑपरेटिव्स को बोल देंगे या एनजीओज को बोल देंगे कि आप पैसा इकट्ठा करके दो। तो ये एक बहुत ऐसा अरेंजमेंट कर दिया कि नेटवर्क बढ़ा दिया उसको, सिर्फ वही स्टेट गवर्नमेंट की नहीं रही, नीचे डाउन द लेवल उनको अथॉरिटी दे दी कि नाउ यू डू दिस। जो आप दे रहे हैं बिजली पे दे रहे हैं तो उसका जो रेवेन्यू कलेक्ट करना है वो भी अब आपकी जिम्मेदारी है। तो नेक्स्ट है द रेगुलेटरी कमीशन बीइंग ऑथराइज्ड टू फिक्स सेलिंग और ट्रेडिंग मार्जिन इफ नेसेसरी। अब जो रेगुलेटरी कमीशन थे उनका क्या काम था, क्योंकि रेगुलेटरी कमीशन जो है पर्टिकुलरली टैरिफ को कंट्रोल करने के लिए, टैरिफ को रेगुलेट करने के लिए, स्टैंडर्डाइज करने के लिए आए थे। तो इनका एक ये था कि आपको ट्रेडिंग मार्जिन जो है ना वो फिक्स करना, क्योंकि तब वो स्टैंडर्डाइज कर पाएंगे टैरिफ जब आपका समय का जनरेशन कॉस्ट एक जैसा होगा, लेकिन थोड़ा तो डिफर करता है, तो आप ना एक हद से ज्यादा प्रॉफिट नहीं ले सकते। तो ट्रेडिंग करते समय मार्जिन जो है, मार्जिन ऑफ प्रॉफिट जिसे कहते हैं ट्रेडिंग मार्जिन, उसको सील कर देते हैं, परसेंट से ज्यादा नहीं लेते। When there is a direct commercial relationship between a consumer and generating company, price of electricity shall not be regulated and only transmission billing charges with surcharge will be regulated। तो जहां पर आपका
डायरेक्ट कमर्शियल रिलेशनशिप है कंज्यूमर के साथ, आपने पावर परचेज एग्रीमेंट ऑलरेडी साइन कर रखा है, तो उसमें टैरिफ की बात नहीं है, आपको सिर्फ बिलिंग चार्जेस उनसे लेने हैं। The Act does not prescribe any model of reforms. Instead, provide flexibility to the state government to choose the model suited to them. इसमें एक्ट के अंदर जो है कौन सा रिफॉर्म का मॉडल अडॉप्ट किया जाएगा ये नहीं बताया गया, बल्कि फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है स्टेट गवर्नमेंट को कि आपको चूज करना है कि कौन सा मॉडल आपको सूट करता है। ये एक ब्यूटी है इसकी। देन इसी तरह से स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन कमीशन, पहले तो इनिशियली कहा गया था कि आप चाहे तो करें, लेकिन सेंटर को जरूरी था, लेकिन अभी इसमें मैंडेटरी कर दिया कि सीआरसी इज मैंडेटरी रिक्वायर्ड। एससीआरसी जो है उसको स्टेट में, जो भी स्टेट है वो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन बनानी पड़ेगा, जिससे कि स्टेट की ग्रीवेंस, स्टेट का जो कंज्यूमर की प्रॉब्लम है वहां सॉर्ट आउट हो, और ये वो उससे हैप्पी नहीं है कंज्यूमर तो वो आपके अपील में जा सकते हैं। तो आपके स्टेट को मैंडेटरी कर दिया गया इस रिक्वायरमेंट के लिए। स्टेट गवर्नमेंट हैज फ्लेक्सिबिलिटी टू अनबंडल द एससीबीज और कंटिन्यू विद देम एज डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस स्टेट ट्रांसमिशन। स्टेट गवर्नमेंट को ये फ्लेक्सिबिलिटी दी गई कि आप इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को बंडल कर दो, अनबंडल कर दो। जैसे अभी पहले था स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एक हुआ करता था, अभी जेनको अलग है, ट्रांसको अलग है, डिस्ट्रीब्यूशन का अलग है। डिस्ट्रीब्यूशन अभी बहुत से स्टेट में प्राइवेटाइज हो गया। For example, I come from the Greater Noida or Noida, so Noida Power Company Limited. There is a company which take care of this distribution of the area. So this is a private company, RP Goenka की company है, and the transmission UP Transco है और पूर्वांचल और अलग-अलग करके अलग उन्होंने पूरे स्टेट को भी फर्दर डिवाइड कर दिया। सेम मस्ट बी इन योर एमपी आल्सो और छत्तीसगढ़ ऑल्सो। सो इस तरह से अनबंडल कर दिया है फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन, बेटर सुपरविजन, फॉर बेटरमेंट। मीटिंग ऑफ ऑल एसेट सप्लाई मेड मैंडेटरी, ये एक ड्यूटी है कि आप ये नहीं कह सकते सर मैंने, क्योंकि क्या है कल को लोग अपनी जनरेटिंग कंपनी लगाएंगे और क्योंकि उस पर को टैक्स भी तो देना है, तो गवर्नमेंट का टैक्स बचाने के लिए कहेंगे सर इतना ही बनाया इतना ही बेचा। ये एक मैंडेटरी कर दिया कि मीटरिंग करना पड़ेगा, आप बना के कितना बेचा ये मीटर्ड होना जरूरी है। तो आप जो जब बना रहे हैं, बिजली बना रहे हैं, तो वो मीटर्ड होगी कि कितनी बनाई आपने, तो आपको पता लग जाएगा जब बनाई है तो बेची है डेफिनेटली। ऐसा तो नहीं कि बना करके घर पर स्टोर करने की चीज तो है नहीं। तो ये एक मैंडेटरी कर दिया गया कि मीटरिंग ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई मेड मैंडेटरी। आप जो सप्लाई कर रहे हैं जिससे कि आपका गवर्नमेंट का जो आपको ड्यूटीज हैं आप स्टील ना कर पाए, चोरी ना कर पाए। Then appellate tribunal to hear appeals against the decision of the CRC and SRC. Appellate authority को भी टीच दिया कि यदि कंज्यूमर को या किसी भी पार्टी को आपके CRC के या SCRC के अवार्ड जो है नागवार हो जाते हैं, पसंद नहीं है, तो दे कैन गो फॉर द अपील। तो appellate tribunal जो है खोले गए। The CA shall provide provisions related to safety and electricity supply. और सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी को कहा गया कि आपको जो है सेफ्टी रिलेटेड इलेक्ट्रिक सप्लाई के अंदर जो सेफ्टी मेजर्स हैं स्टैंडर्ड जो है टाइम टू टाइम बनाने। और एक ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी करके जो डिपार्टमेंट है उसको दिया गया को आपको इलेक्ट्रिसिटी कंजर्वेशन पर ध्यान देना, एनर्जी कंजर्वेशन पर ध्यान देना। तो ये प्रोविजन दिया गया सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी को कि आपको सेफ्टी, कि आपका इलेक्ट्रिक सप्लाई शुड बी सेफ। तो ये उसमें उनको दिया, पावर दिया गया। प्रोविजन रिलेटिंग टू थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मेड मोर स्ट्रिंजेंट। अब क्या था कि पहले ये रहना था कि हमारा जो स्टेट से पूछते थे आपका व्हाई योर फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द स्टेट इज पुअर, मेरा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इज पुअर, तो कहते थे चोरी होता है, कांटी मार के पैसे निकाल लेते हैं, ये कर देते हैं। तो उन्होंने ये एक इनको एक तरह का हंटर दे दिया, एक वो कहते हैं हित दे दिया। तो ये प्रोविजन किया गया इसके अंदर मोर स्ट्रिंजेंट करके, यदि पहली बार पकड़ा जाता है फर्स्ट कन्विक्शन, इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years और फाइन और बोथ, या तो 3 साल का
सजा होगी, इम्प्रिजनमेंट होगी, या फाइन होगा, या दोनों भी हो सकता है। लेकिन सेकंड के अंदर सेकंड कन्विक्शन यदि वो पकड़ा जाता है तो इम्प्रिजनमेंट नॉट लेस देन 6 मंथ एंड नॉट एक्सीडिंग 5 years, मिनिमम 6 महीना, मैक्सिमम 5 साल, फाइन नॉट लेसर देन ₹2, और फाइन के भी इन्होंने डिफाइन कर दिया कि 10,000 से कम नहीं, मतलब 6 महीने से सजा कम नहीं, 10,000 से फाइन कम नहीं, मैक्सिमम जो है आपका 5 साल की सजा, और बोथ दोनों भी हो सकता है। तो फर्स्ट कन्विक्शन सेकंड कन्विक्शन को डिफाइन कर दिया जस्ट टू मेक दिस कि आपको रिस्ट्रेन करें चोरी करने से। तो थेफ्ट जो आपके जो है उसको रोकने के लिए है, तो ये इसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत स्ट्रिंजेंट कर दिया गया। तो वंस क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्लाइड, I will just once again read it. Provision for relating to theft of electricity made more stringent. First conviction, imprisonment up to 3 years or fine or both. 3 साल की सजा, फाइन या दोनों। सेकंड कन्विक्शन क्या है? imprisonment not less than 6 months, 6 महीने से कम नहीं, लेकिन 5 साल तक, मैक्सिमम 5 years। और फाइन जो है नॉट लेस देन, यानी कि 200-500 रुपए का फाइन करके छोड़ दिया, 10,000, और दोनों भी हो सकती है, आपका 5 साल की सजा, 10,000 का जुर्माना, दोनों भी हो सकता है, आपको देख उसके ऊपर सिक्योरिटी की देखने पर। So this was given tool to reduce the theft, अथॉरिटी को टूल दिया गया, so that we should not steal. The Regulatory Commission shall specify the tariff in such a manner that the generation, transmission, and supply of electricity is conducted on commercial principles. अब ये था कि भाई आप जो बेच रहे जो बिजली जनरेट कर रहे हो, या ट्रांसमिट कर रहे हो, या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, सप्लाई कर रहे हो, ये इसमें कुछ कॉमर्शियल बेनिफिट नहीं होगा तो क्या फायदा रहेगा? तो आपका कॉमर्शियल प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए कहा गया कि आपको रेगुलेटरी कमीशन जो है वो आपको टैरिफ में इतना प्रोविजन देंगे, आप जो टैरिफ लेते हैं इसमें इतने परसेंट तक आपको मिलेगा। अब न किसी को परसेंटेज ज्यादा का मन मर्जी कर सकता है, और न ये कह सकता था इतना कम था, इस वजह से मेरी फाइनेंशियल हेल्थ खराब होगी, खराब होगी, डिटोरेट होगी। सो आपका ये प्रोविजन किया गया। एनकरेज कंपटीशन एंड एफिशिएंसी, डेफिनेटली जब प्राइवेट प्लेयर्स हैं, पब्लिक सेक्टर्स हैं, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर्स हैं, स्टेट पब्लिक सेक्टर हैं, तो देयर इज ए competitive market, so one has to be competent to enter into competition as well as efficient to beat the competition. यदि आप efficient हैं तभी आप competition को beat कर पाएंगे, competent है तभी आप competition में आ पाएंगे। Safeguarding of consumer's interest, बेसिकली ये क्या है, कंज्यूमर का जो इंटरेस्ट है उसको सेफगार्ड करा। पहले कंज्यूमर के कोई नहीं सुनता था, अभी 2003 वाले एक्ट में जो अमेंडमेंट हुआ उसमें कंज्यूमर को काफी अहमियत दिया गया, तो उसके इंटरेस्ट को सेफगार्ड किया गया। बहुत बड़े एक्ट, कई एक्ट सेक्शंस हैं जिसमें मिलता है, सबको बड़ा डिस्क्राइब नहीं किया है, लेकिन मोटा मोटी ये बता रहे हैं कि उसमें इंटरेस्ट जो है का कंज्यूमर का प्रोटेक्ट किया गया, सेफगार्ड किया गया। टैरिफ प्रोग्रेसिवली रिड्यूसेस एंड रिफ्लेक्ट्स द कॉस्ट ऑफ सप्लाई फैसिलिटी। अब टैरिफ जो है आप यदि रिड्यूस कर देंगे तो आपका कॉस्ट ऑफ सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी इफेक्ट करेगा, मतलब फाइनेंशियल हेल्थ डाउन हो जाएगा। बढ़ा देंगे तो घर ज्यादा बढ़ने से लोग या तो चोरी करेंगे या फिर ना नहीं खरीदेंगे। तो एक है ना, ऐसा होना चाहिए जो कि रीजनेबल हो। फंक्शन ऑफ द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, सीईआरसी का फंक्शन क्या है? तो ये जो फंक्शन है उसमें मोटा मोटी देखेंगे तो रेगुलेट द टैरिफ ऑफ द जनरेटिंग कंपनीज owned or controlled by the central government or having a scheme of generation and sale of electricity in more than one state. It means if you are setting up a power plant in Chhattisgarh, you can sell your generated electricity to Delhi state or to MP or to Rajasthan. So interstate आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, दे सकते हैं, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में और एक से ज्यादा स्टेट में भी दे सकते हैं, in more than one state.
क्योंकि आपको सिर्फ ग्रिड पे डालने हैं, वो ग्रिड के हिसाब से आपको इलेक्शन पे डालना है, रीजन डालना है, उससे चलेगा। रेगुलेट इंटरस्टेट ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आपका इंटरस्टेट ट्रांसमिशन को रेगुलेट हो जाता है। देन डिटरमाइन टैरिफ और इंटरस्टेट ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो आपका जो इंटरस्टेट ट्रांसमिशन से इलेक्ट्रिसिटी का आपका टैरिफ डिटरमाइन होता है, जो आपका उस ग्रिड का चल रहा होगा रेट वो आपको लगेगा। Then issue licenses to function as the transmission license in status, आप यदि ट्रांसमिशन का डिस्ट्रीब्यूशन का जिसका लाइसेंस दिया है वो लाइसेंस ले सकते हैं, फंक्शन कर सकते हैं। सेटल डिस्प्यूट विद जनरेटिंग कंपनीज एंड ट्रांसमिशन लाइसेंसेस, आपके जो डिस्प्यूट्स हैं उनको सेटल करना CERC का काम है कि आपका किसी जनरेटिंग कंपनी या ट्रांसमिशन कंपनी में कुछ डिस्प्यूट रहता है, टू पार्टीज के डिस्प्यूट को सेटल करना एज ए मीडिएटर, एज ए जजमेंट पास करना है क्या सही है क्या गलत है। टू स्पेसिफाई द ग्रिड कोड, अब ग्रिड कोड को स्पेसिफाई करना। ग्रिड कोड अगेन मैंने बोला ग्रिड डिसिप्लिन होना चाहिए। ग्रिड डिसिप्लिन का अंदर क्या है कि पीक आवर्स के अंदर सारे लोगों ने ओवरलोड कर दिया तो ट्रिप कर जाता है आपका ग्रिड, या आपका फ्रीक्वेंसी सही नहीं है, तो आपके ग्रिड कोड्स जो स्पेसिफाई किए हैं वो उनको टाइम टू टाइम रिव्यू करना, रिवाइज करना और उनको मेंटेन करना। टू स्पेसिफाई द स्टैंडर्ड एंड एनफोर्स द स्टैंडर्ड विद रिस्पेक्ट ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी मतलब पावर क्वालिटी अगेन फ्रीक्वेंसी। सो स्पेसिफाई द स्टैंडर्ड एंड एनफोर्स, आपको स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, एनफोर्स करना है, और क्वालिटी के रिस्पेक्ट के अंदर क्वालिटी पावर शुड बी मेड अवेलेबल टू द कंज्यूमर, ये मैटर है। तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एनर्जी, एक पार्लियामेंट्री स्टैंडर्ड कमेटी है, स्टैंडिंग कमेटी है जो कि एनर्जी पर है। उसके अंदर 5 लीगल कॉन्स्टेंट्स हैं, जो नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के मेंबर्स हैं, देन स्टेट गवर्नमेंट, देन स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, देन वर्ल्ड बैंक स्टाफ एंड कंसल्टेंट्स। वर्ल्ड बैंक का स्टाफ इसलिए होता है, वर्ल्ड बैंक का इसलिए होता है क्योंकि आपने जनरेटिव पावर सेटअप करने के लिए, इफ यू और ट्रांसमिशन लाइन सेटअप करने के लिए, इफ यू हैव बोरोड मनी फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट मूवमेंट, तो आपका जो क्योंकि फाइनेंशियल इंटरेस्ट उनके स्टेट पर होते हैं, इसलिए दे आर आल्सो मेंबर्स। Then the international consultants, then ministry associates, CII, SOCHM, FICCI, these are the members. Then IPPs, जो private players हैं आपके power generators के, then private distribution companies, then legal, technical, and financial experts, जिनको legal के, technical के, financial experts होते हैं, apex consumer organization, other stakeholder experts, they are the party. तो कंक्लूजन क्या रहा? द एक्ट रिकॉग्नाइज द प्रेजेंट इंडस्ट्री स्ट्रक्चर जो 2003 बना था, बेस्ड ऑन द स्टेट ओन्ड मोनोपोलीज, एंड क्रिएट्स एन एनेबलिंग फ्रेमवर्क फॉर द स्टेट टू परस्यू ए cautious yet definite path toward restructuring and liberalization of the electricity industry that is essential to achieve an annual growth rate of 7 to 8%. आपका जो GDP है वही आपका इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, तो आपका मतलब 7 to 8% को ध्यान में रखते हुए आपको मतलब अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई देना है। वो कब कैसे दे सकते हैं आप? इस एक्ट के अंदर रिकॉग्नाइज किया है कि आपको मोनोपोली को खत्म करना है, आपको फ्रेमवर्क ऐसा देना है जो आपका स्टेट्स उनको परस्यू कर सकें, और आपका एक एनेबलिंग कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जिससे कि आपका इलेक्ट्रिसिटी जिसको भी चाहिए एंड तक कैटर हो सके। ये आपका पाथ है प्री 1991 ये था, नो कंपटीशन नो चॉइस। अब जो जनरेटिंग कंपनी है वो ट्रांसमिशन को देती थी, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन को देती थी, डिस्ट्रीब्यूशन कंज्यूमर को दे देते, आपके पास कोई चॉइस ही नहीं था। देन 1991 के बाद क्या हुआ? जनरेटिंग कंपनी जो है वो ट्रांसमिशन को देती थी, ट्रांसमिट करती थी, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन को देता था, देन कंज्यूमर्स को। तो एक की जगह कई जनरेटिंग कंपनी, पहले एक ही जनरेटिंग कंपनी थी, एक ही ट्रांसमिशन कंपनी थी, एक ही डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी थी और कंज्यूमर था। अब क्या हो गया कि 91 के बाद में जनरेटिंग कंपनीज बहुत हो गई। देन पोस्ट 2003 के अंदर होलसेल कंपटीशन बढ़ गया, जनरेटिंग कंपनीज भी बहुत हो गई। देन आप डायरेक्ट जो है डिस्ट्रीब्यूशन वाले वो भी अपना ट्रांसमिशन के थ्रू जनरेटिंग लगा सेटअप कर सकते हैं, इंटर एरिया हो गया। और कंज्यूमर जो है आप डायरेक्ट जनरेटिंग कंपनी से भी ले सकते हैं। देन प्रपोज फ्रेमवर्क जो है, जो आज की डेट के अंदर जनरेटिंग कंपनी ऐसे बढ़ती चली जाएंगी,
आपका इंटरचेंज रहेगा, ये रेवेन्यू रहेगा, कंज्यूमर रहेगा। आप किसी से भी अपनी चॉइस के हिसाब से आप अपना बिजली ले सकते हैं, आपको जो पसंद है उससे ले सकते हैं। तो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जो है ये 2003 का थोड़ा सा हमने आपको डिटेलिंग के अंदर बताया। अब 2014 के अंदर इस बिल के अंदर जो कमियां थी उनको लेकर के अमेंडमेंट प्रपोज किया गया कि ये 2014 में वो अपलोड किया हुआ उसमें साइट पर अवेलेबल है। तो प्रपोज अमेंडमेंट क्या है वो? The Electricity Act 2003 was enacted to amalgamate and modernize the earlier electricity laws, namely 1910, 1948 and 1998, जिसका earlier मैंने step बताया आपको। The Act was reviewed and amended twice, 2004 में और 2007 में, to give effect to the certain changes considered necessary, जो बहुत necessary थी उनको लेकर के 2004 में, 7 में कुछ अमेंडमेंट में, सॉरी एक्ट में 2003 के अमेंडमेंट में एक्ट में अमेंडमेंट किया गया, लेकिन कंप्लीट ओवरऑलिंग नहीं हुई। ये 2014 के नियम दोबारा से प्रपोज किया। द इंडियन इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2004 ये इंट्रोड्यूस किया गया लोकसभा के अंदर 2014 के अंदर। चेंजेस एम्ड एट प्रमोटिंग, फर्स्ट क्या है, कंपटीशन को बढ़ाना। अनदर एम क्या है, एफिशिएंसी इन ऑपरेशन, जो आज की डेट में न्यू टेक्नोलॉजीज हैं उसका से ऑपरेशन को इम्प्रूव करना है। द इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी, आपकी क्वालिटी जो है सप्लाई की इम्प्रूव हो, मतलब अनइंटरप्टेड सप्लाई मिले, आपका डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी की मिले, तो ये मतलब है इम्प्रूव क्वालिटी मिले, मतलब ये है कि आज लोड शेडिंग और ये सब चीजें कम हो। तो क्या है, बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस गेन्ड ओवर द इयर्स इट वाज फेल्ट टू रिव्यू द प्रोविजंस फर्दर टू ब्रिंग एफिशिएंसी एंड कंपटीशन इन द डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर। ये सबसे जगह है कि सबसे ज्यादा जो रिक्वायरमेंट है ओवरऑलिंग की या मतलब करेक्शन की या बदलने की, वो है डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर के अंदर। डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर के अंदर दे आर स्टिल कीप ऑन सेइंग के साथ थेफ्ट हो रहा है, ये हो रहा है, कांटी मार के लोग पैसा कर रहे हैं, वी आर नॉट एबल टू कलेक्ट द रेवेन्यू, ये सब है। तो उसमें उन्होंने कहा है कि इसको जो है फर्दर इसकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना है और कॉम्पिटिटिव करना है डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर को। इसीलिए दैट्स व्हाई मोर एंड मोर प्राइवेटाइजेशन इज गोइंग ऑन फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे मैंने एनपीसीएल को बताया, वैसे आपके गुजरात में सुना है ना, कई कंपनियां, टाटा का है, कई सेटअप हुई है जो कि करेंगे। तो स्ट्रेंथनिंग ग्रिड सिक्योरिटी एंड सेफ्टी, दूसरा है कि आपका जो ग्रिड की सिक्योरिटी एंड सेफ्टी को स्ट्रेंथन करना है। देन प्रमोशन और रिन्यूएबल एनर्जी, रेशनलाइजेशन ऑफ टैक्स। अब रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करना, अब रिन्यूएबल एनर्जी से जो आपका प्लांट्स के जो बिजली पैदा होती है और जो आपके थर्मल से होती है या हाइडल से होती है, इन सबों को एक बार लेके आना, मतलब वो रेशनलाइज, उसकी टैरिफ को रेशनलाइज करना। अदरवाइज जो है उसका रेट ऑफ टैरिफ अलग है, उसका टैरिफ अलग है, तो देयर वेरी डिस्पैरिटी। तो जब डिस्पैरिटी है तो मतलब थोड़ा रेगुलेटर में प्रॉब्लम होता है, तो उसको प्रमोट करना कि रिन्यूएबल एनर्जी शुड बी रेशनलाइज, उसकी टैरिफ रेशनलाइज हो जाए, रेशनलाइज करने का बात है। तो स्ट्रेंथनिंग एंड परफॉर्मेंस ओवरसाइट ऑफ रेगुलेटरी कमीशन, तो आपका जो रेगुलेटरी कमीशन हैं इनकी परफॉर्मेंस को भी स्ट्रेंथन करना है, उनको स्ट्रेंथन करना है जिससे कि वो अपना काम अच्छे से करता है, क्योंकि रेगुलेटरी का काम है रेगुलेट करना, सुपरवाइज करना। फिर उसको तो प्रॉपरली यदि आपने उनको कोई पावर नहीं दिया तो ओवरऑल सुपरविजन क्या करेंगे? सो मतलब उनको दे शुड बी गिवन मोर पावर्स। Certain legislative changes were suggested by working group on the power for the formulation of 12th 5-year plan। जब 12th 5-year plan बन रहा था तभी है ना ये बात हुई थी, और उस समय ये कुछ पॉइंट निकल करके आए थे, तभी हुआ था। And which were further examined under committee constituted under the chairperson of the Central Executive Authority के chairperson थे, उनके headed by him एक कमेटी बनी थी, और उसमें ये सब चीजों को, जो चीजें हैं एरियाज, ग्रे एरियाज जो हैं, उनको आइडेंटिफाई किया, एंड ही recommended for the changes for 2014 जो लोकसभा में बिल पेटअप किया गया था। Based on the recommendation of the said committee, the proposed amendments were uploaded on the website of Ministry of Power month of October 2013। 2013 के अंदर ही इसमें इसके रिकमेंडेशन को लेकर के वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया था, और सभी से इनके बार-बार ना रिएक्शन मांगा गया था कि आप अपने अपने व्यूज दीजिए।
views are invited is on website, sir. Thereof consultations were held with the various stakeholders, including those from the central ministries. उसके बाद जैसे जैसे व्यूज आए उनको टाइम टू टाइम मीटिंगें हुई, बुलाया गया। स्टेक होल्डर कौन थे? इसमें से सेंट्रल मिनिस्ट्रीज के थे, स्टेट गवर्नमेंट है, जनरेटिंग कंपनी है, ट्रांसमिशन कंपनी, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, प्राइवेट डेवलपर्स, देन ट्रेडर्स, देन इंडस्ट्री एसोसिएशंस जैसे कि जो मैंने बताया, देन कंज्यूमर ग्रुप्स, देन पावर एक्सचेंजेस। आजकल तो पावर एक्सचेंज के थ्रू आपकी ट्रेडिंग होती है, पावर एक्सचेंजेस, एंड इंडिविजुअल्स, इवन एज इंडिविजुअल स्टेक होल्डर भी आप, एज ए कंज्यूमर भी आप है ना, उसमें कुछ आपको कोई हुआ है तो आप सजेशंस या कुछ डाल सकते हैं। सो दिस ऑल अक्रॉस द कंट्री the suggestions were invited and some discussions were held. Based on the exhaustive consultations, certain amendment to the Indian Electricity Act 2003 have been proposed broadly. और इसके बाद 2003 के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है उसको जो अमेंड करना चाह रहे थे, उस सजेशंस को ध्यान में रखते हुए एक प्रपोजल बना है। उस प्रपोजल के बारे में हम क्या उसकी प्रपोजल है, क्या उसकी मेन हाईलाइट्स है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्या है? एनहांसिंग ग्रिड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, कि ग्रिड की जो है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को और एनहांस करना है। हाउ? इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन एंड एनहांस ग्रिड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, स्पेसिफिक मेजर्स रिगार्डिंग मेंटेनेंस ऑफ स्पिनिंग रिजर्व्स along with strong and effective deterrents in the form of the enhanced penalties for violation of the direction given by the state and regional load dispatch center have been ensured. उन्होंने कहा कि इनको है ना पावर दे दो जिससे कि ये मेंटेनेंस स्पिनिंग रिजर्व्स along with the strong and effective deterrents, आपका स्ट्रॉन्ग डेटरेंस होना चाहिए जिससे कि ग्रिड डिसिप्लिन रहे, तभी है ना आपका सेफ रहेगा ग्रिड। इसको ग्रिड की तब रह सकता है जब आपके वहां पर फिश मार्केट नहीं बन जाए। तो उन लोगों को डेटरेंस करने के लिए एनहांस पेनल्टी उनको लगा दी कि आप डिसिप्लिन नहीं दोगे तो पेनल्टी विल बी इम्पोज्ड, एंड पेनल्टी जो है हाई पेनल्टीज। तो रीजनल लोड डिस्पेंस सेंटर्स हैं, इन सबों को मतलब टूथ वर्क प्रोवाइड। देन सेपरेशन ऑफ कैरेज एंड कंटेंट इन द डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर, तो आपका कैरेज एंड कंटेंट को डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में अलग अलग कर देना। To attain the objective of the efficiency of giving choice for the consumer, so competition in different segments in the market, concept of multiple supply licenses is proposed by segregating the carriage from content to the distribution sector and determination of carriage based on the market principle while continuing with the carriage distribution market as a regulatory activity. ये एक इसमें further propose किया गया licenses के लिए। To protect the interest of consumer, the tariff for retail sale of the electricity is proposed to be kept, though the regulator and one of the supply licenses is proposed to be a government control company. ये गवर्नमेंट कंट्रोल कंपनी को कहा गया कि आपको ना इसको सुपरवाइज करना, देखना। The existing distribution licenses are proposed to continue till the expiry of the term as special, और कहा गया कि जो अभी चल रहे हैं लाइसेंस को उनकी एक्सपायरी तक वेट करिए, रिन्यूअल करते समय इस चीज को ध्यान रखना है कि दे शुड बी license should be renewed only based on the above, taking care of the above. प्रमोशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, अब ये है कि भाई आपका थर्मल से जो है पॉल्यूशन बहुत हो रहा है, एनवायरमेंटल हैजार्ड हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, तो emphasis were given to the renewable energy. So in order to accelerate the development of renewable energy sources, a number of measures including provision for a separate national renewable energy policy. तो एक जैसे इंडियन नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी है, इसको उन्होंने बाइफरकेट कर दिया। नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी का एक पार्ट हो गया जो नेशनल रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी हुई, कि आपकी हमारी रिन्यूएबल के बारे में क्या पॉलिसी रहेगी। रिन्यूएबल हमारी एनर्जी के प्लांट है, रिन्यूएबल एनर्जी से चलने वाले चाहे विंड हो, सोलर हो, इन लोगों की क्या, इवन अब तो पहले एक मिनिस्ट्री भी बना दी थी पीछे रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। तो ये एक बड़ा शिफ्ट है कि रिन्यूएबल एनर्जी को ज्यादा एम्फेसिस दिया गया। डेवलपमेंट रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्री, then promotion of renewable energy का मतलब renewable generation obligation on coal and lignite based thermal plants, specific exemption to renewable energy sources from open access surcharge, इनको है open access surcharge से exempt किया गया जिससे प्रमोट हो पाए। जैसे अपन किसी चीज को करता है कि आपका import duty या import को discourage करना है तो हमें ना excess duty घटा देते हैं। तो घटाने से क्या है कि वो जो मैन्युफैक्चर इंडियन के हैं
तो वो प्रोडक्ट जो है वहाँ इंडिया में सस्ता हो जाता है, तो दे डिस्करेज इम्पोर्टिंग दैट। और यदि किसी को डिस्करेज करना होता है उल्टा, एक्साइज ड्यूटी इतनी बढ़ा देते हैं कि आपका जो है इंडियन कॉस्टली रहता है एंड इम्पोर्टिंग इज चीपर वे। तो दैट वे दिस मैकेनिज्म वाज मेड कि आप रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर इन सोर्सेज को लेके आओ। तो सेपरेट प्रोविजन फॉर नॉन कंप्लायंस और रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन have been assessed under general generation obligation, coal and lignite based। अब वह कोल या लिग्नाइट बेस्ड थर्मल प्लांट्स के लिए आपको जैसे कोयले पर आपका बढ़ा दिया या जैसे उसको टैरिफ में कुछ ऐसा कर दिया, तो आपका नेचुरली लोग पीपल स्टार्ट प्रेफरिंग फॉर गोइंग फॉर द रिन्यूएबल एनर्जी। तो टैरिफ रेशनलाइजेशन to rationalize the tariff structure on the sound financial principle for the visibility of the distribution sector and recovery of revenue requirement of licenses without any gap, the provision of the tariff policy are proposed to be made mandatory and determination of tariff। ये मैंडेटरी कर दिया गया कि टैरिफ को रेशनलाइज करना जरूरी है, अदरवाइज जो है कोई भी आपको रिन्यूएबल एनर्जी से नहीं लेगा, क्योंकि दैट वुड बी लिटिल बिट कॉस्टली। तो आपको रेशनलाइज करना है, पीपल शुड नॉट फील बर्न्ड ऑफ दैट। यदि आपका बाय वे ऑफ सब्सिडी हो चाहे किसी भी तरह टैरिफ को ऐसा करना है कि वो इजीली अप्रोच में हो लोगों के खरीदने की। तो टैरिफ रेशनलाइजेशन का मतलब क्या है? द बिल इन्वेस्टाइज टाइमली फाइलिंग ऑफ द टैरिफ पिटीशन बाय यूटिलिटीज, डिस्पोजल ऑफ द सेम बाय द एप्रोप्रिएट कमीशन विद इन स्पेसिफाइड टाइम और पीरियड। मतलब यदि आपका टैरिफ रेशनलाइजेशन नहीं होता उस केस में उनको पावर दिया गया है कि आप अपने टाइम के अंदर अपनी देंगे एप्लीकेशन देंगे, उसका डिस्पोजल जो है एप्रोप्रिएट कमीशन को स्पेसिफिक टाइम में करना है। यदि वो नहीं करता है तो स्यू मोटो आपका यूटिलिटी जनरेटिंग कंपनी का से बेसिस पर वो आपका एक्शन लेंगे और डिसाइड कर देंगे, ये स्यू मोटो एक्शन ले लेगा। मिसलेनियस है कुछ। The suitable amendments are also proposed for improving accountability and transparency in the working of the appropriate commissions without the affecting their functional autonomy। उनके functional autonomy को विदाउट हिंडर किए हुए उनको कमीशंस को appropriate commissions को और पावर देना जिससे कि वो परेशानी नहीं हो। Bringing clarity in regard to appointment, function and power of the chief electrical inspector, electrical inspectors and levying of fees for the electrical inspections। अब क्या था कि इसमें ना स्टेट टू स्टेट डिफर करता था। आप जैसे आप कुछ इंस्टॉलेशन कराया तो जो आपका इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर या बड़ी आपकी फैक्ट्री चीफ इंस्पेक्टर है तो उनके जो इंस्पेक्शन के चार्जेस थे या फीस थी वो अलग अलग हुआ करती थी। तो उसको भी एक रेशनलाइज करना है, क्योंकि एक तरह का होना चाहिए, क्योंकि एक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कुछ कर रही है या एक कंपनी कुछ कर रही है और दूसरी कंपनी कुछ कर रही है, तो ये करना इरेशनल हुआ करता था। तो इसको भी एक प्रोविजन रखा गया कि सब चीजों को रेशनलाइज करना चाहिए। एक इंस्पेक्टर भी एक्स पर्सन जो है यहाँ पर कंपनी से जाता है तो से 1000 रुपीज उसका फीस है, लेकिन दूसरा वाला जाता है तो 1500 या 2000 है। व्हाई शुड देयर डिस्पैरिटी? तो इस डिस्पैरिटी को खत्म करने के लिए उन्होंने कहा कि फंक्शनल पावर ऑफ द चीफ इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर भी सेम है, तो लेविंग अ फीस ऑफ द इंस्पेक्टर शुड आल्सो बी सेम। देयर शुड नॉट बी एनी डिस्पैरिटी। दूसरा एग्जम्पशन टू डेवलपर ऑफ एसईजेड्स रेलवे एंड मेट्रो रेल फॉर द ऑपरेटिंग इंश्योरेंस। ये एक और उन्होंने खास बात कहा कि यदि आप उसको प्रमोट करना है तो जो स्पेसिफिक इकोनॉमिक जोन्स हैं या रेलवेज हैं या मेट्रोज हैं उनको डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस लेने से एग्जाम करना पड़ेगा। दूसरा है कलेक्शन रियलाइजेशन ऑफ एनी ड्यूज अलोंग विद द इलेक्ट्रिसिटी ड्यूज एक्स्ट्रा। अब ये जैसे आपका सोसाइटीज के अंदर कर दिया उन्होंने कि भाई आप ना एक पॉइंट पर ले सकते हैं, बाद में फिर आप आगे इंडिविजुअल कंज्यूमर को दे दीजिए। तो कलेक्शन और रियलाइजेशन आपकी जिम्मेदारी है। आपको एक पॉइंट पर मीटर से दे देंगे बिजली और उसके बाद आप बाकी, ये भी प्रोविजन के लिए उसमें रखा गया है। तो ये अभी तक हमने डिस्कस किया रिफॉर्म्स के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी के बारे में। तो अभी तक कोई क्वेश्चन है तो बताएं, नहीं तो मैं थोड़ा सा कुछ दूसरी चीज डिस्कस करूंगा। हेलो, am I audible? हेलो।
Yes, sir. Sir, you are audible. ओके, सो अभी तक कुछ क्वेश्चन है, कुछ पूछना है? Participant, any question? ओके, नो प्रॉब्लम। गिव मी 1 मिनट, मैं दूसरा पीपीटी अपलोड कर रहा हूँ, लोड कर रहा अच्छा, हूँ। yes sir. अभी नो क्वेश्चन मीन्स समझ आ रहा है चीज, यही समझो ना? हेलो, shall I assume that everything is you people understood? Yes, sir. हाँ नहीं सर, आपने बहुत अच्छे से बताया सब चीजें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट। थोड़ा सा नीरस सब्जेक्ट है टॉपिक ऐसा है क्योंकि एक्ट है ना, ये लीगल और सब चीजें हैं, पॉलिसीज है। तो अभी हम जो बात कर रहे थे नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी, तो थोड़ा सा समझिए पॉलिसी और प्लान में फर्क है। प्लान जो है आपका प्लानिंग कमीशन बनाता था, और 12th प्लान, 13th प्लान, 11th प्लान, 10th प्लान ऐसे था। तो नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान के बारे में बात करते तो प्लानिंग कमीशन नाउअडेज नीति आयोग बनाया, एंड नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी इज ऑलवेज बाय द गवर्नमेंट। तो दिस द डिफरेंस बेसिकली पॉलिसी के ध्यान में रखते हुए। जैसे अभी इंडियन इलेक्ट्रिसिटी नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी है कि हर घर में बिजली पहुंचाई जाएगी, ये किया जाएगा, ये किया जाएगा। तो आपका नेशनल की पॉलिसी एज ए नेशन हम बात कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन किस प्लान तक, किस स्टेट में पहुंचाएगा, किस ईयर तक कहां पहुंचेगा, वो प्लान है कि इसको कब टेकअप किया जाएगा, इसको कब टेकअप किया जाएगा। सो दिस द बेसिक डिफरेंस इन दैट। इज दैट क्लियर सर? Yes sir. Right. So in compliance with the section 3 of the Indian Electricity Act 2003, the central government has notified the national electricity policy on 12th February 2005. 2003 में जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट बना जिसकी हम बात करते हैं, तो फरवरी 2005 के अंदर अंडर सेक्शन 3 में यह था कि हम रिव्यू करेंगे इसको। तो रिव्यू किया गया और ये पॉलिसी बनाई गई। ये पॉलिसी क्या है? फर्स्ट इसका एम था laying guideline for the accelerated development of the power sector, ADRP बोलते हैं इसको। ADRP एक स्कीम थी जिसके के अंदर एनटीपीसी को पर्टिकुलरली ये चैलेंज दिया गया था गवर्नमेंट की तरफ से 2005 के अंदर कि आपको गांव-गांव अपने रिप्रेजेंटेटिव, अपने ऑफिसर्स को गांव-गांव में भेजना, और गांव-गांव में भेजने के बाद में आपका जो वहां पर आप देखते हैं कि कोई इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन वीक है या ओवर करंट ड्रॉ कर रही है, तो आप उनको, जो ओनर हैं उनको या ग्राम पंचायत वालों को बताएंगे, जिससे कि आपका एनर्जी कंजर्वेशन हो। फॉर एग्जांपल, एक आप किसी गांव में गए, मैं जैसे एनटीपीसी की तरफ से डिप्यूट किया गया और मैं किसी गांव में गया, तो गांव में जाने के बाद मैंने देखा कि एक ट्यूबवेल है जहां पर पंप लगा हुआ है, लेकिन मोटर उसकी ओवर करंट ड्रॉ कर रही है बिकॉज की बेरिंग खराब हो चुकी है। इसका मतलब है बेरिंग नीड्स रिप्लेसमेंट। तो आई विल सजेस्ट दैट फार्मर कि प्लीज गेट द बेरिंग रिप्लेस्ड। ये तुम्हारा 500 रुपए का खर्चा है, लेकिन ओवर करंट से या तो कभी मोटर रुक जाएगी या आपका ये खर्चा ज्यादा आ रहा है, इसको आप है ना, क्योंकि जाम हुआ पड़ा हुआ आपका, तो आपका इसको ठीक कराइए। तो आपका इस तरह एनर्जी कंजर्वेशन भी होगा, नंबर 2 लोगों को समझदारी आएगी। तो ये इस तरह का तो एक्सीलरेटेड डेवलपमेंट एक प्रोग्राम बना था, पावर सेक्टर को दिया गया था, जिसमें एनटीपीसी को सबको दिया था। बट एनटीपीसी टुक एज ए चैलेंज एंड वी पीपल वर डिप्यूटेड इन वेरियस स्टेट, इन वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स, विलेजेस टू कन्विंस द फार्मर्स टू ऑडिट द इंडस्ट्रीज। छोटे छोटे जो फैक्ट्रियां हैं उनमें जहां जाने का एक तरह का ऑडिट करके उनको बताया था, सजेस्ट किया था, उनको एजुकेट किया था, देखो ये गलत कर रहे हो, देखो जरा सा खर्चे होने की वजह से आप इसको अवॉइड कर रहे हो, लेकिन ये आपको ऐसे जल जाएगा, आपका ये 4 दिन बाद मोटर जल जाएगी तो आपको मोटर बदलवानी पड़ेगी, लाइक दिस। तो प्रोवाइडिंग सप्लाई ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी टू ऑल एरियाज, क्योंकि एम ये था कि जो आप बिजली बचाएंगे एनर्जी कंजर्वेशन से, वो किसी और के कम आएगी। तो प्रोवाइडिंग सप्लाई
इलेक्ट्रिसिटी टू ऑल एरियाज। तो ये एम लेके चले थे, एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी जनरेटेड। जो एनर्जी सेविंग करेंगे वो एनर्जी जनरेट हुई और दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू अदर्स नीडी पर्सन्स को। अदरवाइज क्या हो रहा है कि लोग जिनके पास लिमिटेड है उनको मिला हुआ है, वो है ना ठीक तरह से यूटिलाइजिंग कर रहे हैं और कंजर्वेशन नहीं हो रहा है एनर्जी का। सो दिस इज वाज द पॉलिसी बाय द गवर्नमेंट कि आप जाके लोगों को एजुकेट करिए। एंड प्रोटेक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर एंड अदर स्टेक होल्डर्स कीपिंग इन विद द अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। जो आपके एनर्जी के रिसोर्सेज है, जैसे तो मैंने बताया कंज्यूमर एंड पर, इसी तरह से यदि वहां कोई प्लांट लगा हुआ है, आपके ट्रांसफार्मर का है, उसमें कोई प्रॉब्लम है, या वहां पर कोई इवन छोटे मोटे आपके डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स है, वहां कोई कमी दिखती है तो वो भी बताना। देन टेक्नोलॉजी अवेलेबल टू एक्सप्लॉइट दीज रिसोर्सेज। आपको टेक्नोलॉजी बतानी है कि एक टेक्नोलॉजी अवेलेबल है आज के डेट के अंदर और उनको यूज करिए। इकोनॉमिक्स ऑफ जनरेशन यूजिंग डिफरेंट रिसोर्सेज, एनर्जी सिक्योरिटी इश्यूज। आपका एनर्जी सिक्योरिटी बढ़ेगी लोगों का, क्योंकि आपका जनरेशन जो है आपका बढ़ेगा इन द वे ऑफ व्हेन यू सेव इट। तो ये इकोनॉमिक्स समझाना उनको कि जनरेशन ऑफ डिफरेंट रिसोर्सेज आपको क्या फर्क पड़ता है। आप जैसे आप कोयले की बिजली, मतलब थर्मल प्लांट से बिजली ले रहे हैं, यदि आप सोलर प्लांट लगा लेंगे, पैनल लगा लेंगे, तो आपको ये बेनिफिट रहेगा। तो इस तरह की चीजों को लोगों को इन्यूमरेट करना और बताना। तो ये जो था नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी हैज बीन इन्वॉल्व इन द कंसल्टेशन विद स्टेट गवर्नमेंट को कॉन्फिडेंस में लिया गया, देन सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, देन सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन एंड अदर स्टेक होल्डर्स, उनको कॉन्फिडेंस में लेकर के पॉलिसी बनी थी। तो एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी मतलब अवेलेबल टू ऑल हाउस होल्ड इन द नेक्स्ट 5 ईयर, ये कहा गया था आगे 5 साल के अंदर सब घर घर के अंदर बिजली होगी। अवेलेबिलिटी ऑफ पावर डिमांड टू बी फुली मेट बाय 2012, ये चैलेंज किया गया था उस सन 2005 के अंदर। एनर्जी एंड पीकिंग शॉर्टेज टू बी ओवरकम, आपका पीक शॉर्टेज या जो आपका पीक आवर्स में जो होती है, तो स्प्रिंग रिजर्व जो अवेलेबल है, इस सबको ध्यान में रखते हुए आपको किया जाएगा। सप्लाई रिलेवेंट क्वालिटी पावर, आपको मतलब कंटिन्यूस पावर मिलेगी, 24/7 मिलेगी, और क्वालिटी पावर मिलेगी मतलब ये क्या फ्रीक्वेंसी पूरी रहेगी, वोल्टेज पूरा रहेगा, ये सब बताया जाता है। पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू बी इंक्रीज टू ओवर 1000 यूनिट्स बाय 2, और ये था कि हम 2012 तक पर कैपिटा 1000 यूनिट्स जो है सेव कर लेंगे बाय दिस एडीआरपी के थ्रू। तो मिनिमम लाइफ टाइम कंजम्पशन ऑफ 1 यूनिट पर हाउस होल्ड पर डे ऐसे 2012 कैलकुलेट किया गया था। फाइनेंशियल टर्न आउट, कमर्शियल वायबिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर, देन प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर इंटरेस्ट। प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर इंटरेस्ट का मतलब ये है कि जब किसी कंज्यूमर को आप इस तरह से बात करते हैं कि तुम्हारे को इतना पैसा बिजली के बिल का बचेगा, तो ध्यान से सुनता है। अदरवाइज आप कुछ भी बोल के आइए तो सुनेगा नहीं। तो आप ना उनको कंज्यूमर के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए बताएंगे। यदि वो कंज्यूमर की गलती नहीं है, लेकिन आपका डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में कोई गलती है, बार बार फूक जाता है, तो आपका तो आप ना कंज्यूमर को यदि समझाएंगे भाई आप ना रिटर्न में कंप्लेंट डालो, आप प्रेशराइज करो स्टेट गवर्नमेंट को या जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी उसको, वो आपका ट्रांसफर की कैपेसिटी बढ़ाएगा, इंक्रीज करेगा। तो इस तरह का अवेयरनेस आएगा लोगों के अंदर, ये भी ऑब्जेक्टिव था। Then CA to notify first national electricity plan in 6 months, ये था कि 12th प्लान जो है नीति आयोग सॉरी प्लानिंग कमीशन बना कर देगा। The plan prepared by CA to be used for the prospective generating companies, transmission utilities, transmission distribution licenses as a reference document, और वो रेफरेंस डॉक्यूमेंट रहेगा CA को भेजने के लिए। CA के रिकमेंडेशन के बाद जो है प्लानिंग कमीशन पर जाएगा। प्लानिंग कमीशन में शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म प्लानिंग के हिसाब से करेगा, कौन सी प्रोजेक्ट को पहले लेना है, कौन सी चीज को डेफर करना है, कौन सी चीज को कब यूज करना है। देन डेवलपमेंट ऑफ रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन बैक, उसका पीछे सबसे मेन जो कॉज था कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन को करना है। शहरों में तो मोरलेस हो जा रहा था, इसे ओवर दिस पीरियड 2005-2007 तक आने लगी थी बिजली, कुछ एरिया में ही कमी रही होगी, लेकिन रूरल में बहुत ज्यादा बुरा हाल था, गांव के अंदर बिजली नहीं होती थी। तो ये एक रखा गया कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन बैकबोन है, यदि गांव में बिजली पहुंचानी है तो आपको ये करना पड़ेगा। तो हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन टू अचीव द NCMP टारगेट
नेशनल आपका चैलेंज था ये 5 साल में करने के लिए। देन फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर कैपिटल सब्सिडी टू स्टेट, ये फिर गवर्नमेंट ने कहा कि हमने स्टेट के पास पैसा नहीं है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा था कि बजट में प्रोविजन करी जाएगी और वो बजट जो है आपको स्टेट को भी सब्सिडी दिया जाएगा। तो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन जो है REC, उसको नोडल एजेंसी बनाया गया और इस इलेक्ट्रिफिकेशन करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पर और स्टेट लेवल पर जो आपका REC के ऑफिसेस खोले गए, उन्होंने इलेक्ट्रिफिकेशन किया। तो क्रिएशन ऑफ एडिक्वेट जनरेशन कैपेसिटी विद स्प्रिंग रिजर्व ऑफ द लीड 5% बाई 2012, ये टारगेट रखा गया। फुल डेवलपमेंट हाइड्रो पोटेंशियल, अब हाइड्रो पोटेंशियल को टैप करना, एक्चुअली क्या है कि हाइड्रो जनरेशन इज ए चीपर बट कैपिटल कॉस्ट इज वेरी हाई। नंबर 2, उसके अंदर एस्टेब्लिश करने के लिए देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द विलेजेस, क्योंकि सबमर्ज हो जाते हैं कैचमेंट एरिया के अंदर, रिजर्वायर के अंदर, तो लॉट ऑफ रूरल रिहेबिलिटेशन इज रिक्वायर्ड एंड दिस इकोलॉजिकल बैलेंस भी कई बार बिगड़ जाता है यदि आपने उसको ठीक तरह से नहीं किया है। तो इन सबको ध्यान रखते हैं, लेकिन फिर ये था कि हाइड्रो को पोटेंशियल को हमको डेवलप करना, क्योंकि टैरिफ इज चीपर, मेंटेनेंस कॉस्ट थोड़ी बहुत लगती है और जो आपका रॉ मटेरियल कॉस्ट तो है ही नहीं, क्योंकि इसमें फ्यूल है ही नहीं। तो चॉइस ऑफ फ्यूल थर्मल जनरेशन टू बी बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक जनरेशन सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उन्होंने कहा था ये बहुत जहां पर जरूरी है वहीं पर थर्मल जनरेशन किया जाएगा और फ्यूल की चॉइस रहेगी आपके पास, आप लिग्नाइट यूज करेंगे, इंपोर्टेड यूज करेंगे या कोल यूज करेंगे, इस पर डिपेंड करेगा। डेवलपमेंट ऑफ नेशनल ग्रिड, अब ये क्या था कि पॉकेट वाइज हो गया था कि यहाँ पर तो कई स्टेट तो डेफिशिएंसी थी, कईयों में सरप्लस था। तो ये कि जैसे महाराष्ट्र है, गुजरात है, ये जो रिच स्टेट है जहाँ इंडस्ट्रीज भी बहुत है, वहां पर हमेशा डिमांड रहती थी, और जो कुछ ऐसी स्टेट है जहाँ पर इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं है, वहां पर वो अनयूटिलाइज रहती थी, मतलब आपका फुल कैपेसिटी पर प्लांट नहीं चलती थी। तो नीड वाज फेल्ट कि आपको ग्रिड को जो है नेशनल ग्रिड में कन्वर्ट किया जाए, मतलब वन नेशन वन ग्रिड होना चाहिए। तो आपका एक ग्रिड से दूसरे ग्रिड तक आपका पावर एलोकेशन इजीली ट्रांसफर हो जाए, चला जाए। दिस वाज द मेन कॉस्ट ऑफ रिकवरी ऑफ सर्विस from consumer and tax reflecting cost enable financial viability sector, provision of support to lifeline consumers, household below poverty line, 30 unit per month in terms of the tariff। ये हुआ कितने तक का ना, जैसे एक ना एक घर एक बल्ब, तो मतलब ये है कि 30 यूनिट्स जो है, क्योंकि एक दिन के अंदर, एक रात के अंदर एक घर के अंदर एक बल्ब जलेगा तो 1 यूनिट कंज्यूम होगा, एक कंज्यूम होगा तो मतलब 30 दिन के लिए, एक महीने में 30 यूनिट, तो 30 यूनिट जो है फ्री करेंगे, कंजम्पशन 30 यूनिट तक फ्री, मतलब गवर्नमेंट देगी उसको पैसा, उसके लिए मीटर नहीं लगाया जाएगा। अवेलेबिलिटी बेस्ड टैरिफ आ गया था, टू बी एक्सटेंडेड टू स्टेट लेवल फॉर द बेटर ग्रिड डिसिप्लिन। आपका क्या होता है, कई जो स्टेट जो है स्टार्व करती थी पावर से, कहीं सरप्लस होता था, तो अवेलेबिलिटी जितनी है तो हिसाब से आपको टैरिफ पर पैसा मिलेगा। स्पेशल एम्फेसिस इन टाइम बाउंड रिडक्शन ऑफ ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस, आपका जो है ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस कोई 25% कर रहा है, कोई 17% कर रहा है, कोई 24% कर रहा है, अपने बस कागजों को पूरा करने के लिए, वो उन्होंने एक रेशनलाइज कर दिया कि नॉट मोर देन दिस, आपका इतना तक लॉसेस को नहीं बता सकते आप। मेजर्स टू प्रमोट कंपटीशन एम्ड एट कंज्यूमर बेनिफिट, कंज्यूमर को बेनिफिट करते हुए आपको कंपटीशन कराना है, वो मेजर लेने हैं। जैसे रिलायबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ पावर सप्लाई ऑफ द नोटिफाइड स्टेट रेगुलेशन कमीशन, आपका स्टेट रेगुलेशन कमीशन है, उनको मोर टीथ प्रोवाइड करना, सो दैट वो अपने मोर पेनल्टी और मोर उसके साथ या टैरिफ को रेशनलाइज वे के अंदर एक्सरसाइज करा पाए। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज सच एज स्मॉल हाइड्रो, सोलर, बायोमास, अब जैसे गोबर गैस प्लांट है, इससे आपके बल्ब लगाना है, या छोटे छोटे चाहे वो हाइड्रो के छोटे प्लांट हैं, छोटी कैपेसिटी लगा करके, सोलर, इन सबों को प्रमोट करने के लिए कहा गया। देन ये जो नेशनल टैरिफ पॉलिसी एक आई, वो आपका सेक्शन 3 के अंदर प्रोविजन थी, 2003 जो एक्ट था उसके अंदर, और ये जनवरी
6/2006 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई की कि टैरिफ जो है ना, टैरिफ पॉलिसी जो एक यूनिफॉर्म रहेगी। और इस टैरिफ पॉलिसी को जो रेगुलेटरी बॉडी है उसको कहा गया था कि आपको टैरिफ को रेशनलाइज करना है और 2006 के बाद में मोरलेस एक जैसा आपको टैरिफ स्ट्रक्चर रखना है। इसका क्या ऑब्जेक्टिव था? एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू कंज्यूमर एट रीजनेबल एंड कॉम्पिटिटिव रेट्स, कि आपका कॉम्पिटिटिव रेट्स पे मिले, रीजनेबल रेट पे मिले, मन मर्जी कोई ना एक्सप्लॉइट करे कंज्यूमर को। देन एंश्योर फाइनेंशियल अवेलेबिलिटी ऑफ द सेक्टर एंड अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट, आपका फाइनेंशियल अवेलेबिलिटी उसकी आपके सेक्टर की बढ़ेगी, क्योंकि इसमें स्टेक होल्डर को भी रहेगा कि हाँ ये प्रॉफिट जनरेटिंग कंपनी है तो आप उसमें पैसा लगा सकते हैं। जब आपके शेयर्स निकलेंगे तो लोगों को इंटरेस्ट रहेगा। जैसे आपका पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के शेयर मार्केट में अच्छे रेट देते हैं। रीजन कि लोगों को कॉन्फिडेंस है कि इनका जो इनमें यहाँ जो पैसा इन्वेस्ट होता है वो सही मायने में यूज होता है। तो प्रमोट ट्रांसपेरेंसी, कंसिस्टेंसी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी इन रेगुलेटरी अप्रोचेस, कि आप है ना प्रिडिक्ट जो रेगुलेटर अप्रोचेस हैं उनको आप प्रिडिक्ट करेंगे कि क्या और करवा सकते हैं। मिनिमम परसेप्शन रेगुलेटरी रिस्क, जिससे रेगुलेटरी रिस्क कम हो और परसेप्शन मिनिमाइज हो और आपकी रिडक्शन बढ़े, इसको ध्यान रखते हैं। प्रमोट कंपटीशन, एफिशिएंसी इन ऑपरेशन एंड इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ सप्लाई, तो आपका कंपटीशन को प्रमोट करना है, एफिशिएंसी को इंप्रूव करना है, ऑपरेशन में भी एंड क्वालिटी में भी। क्वालिटी में भी एफिशिएंसी होनी चाहिए एंड ऑपरेशन में भी एफिशिएंसी होनी चाहिए, ये ऑब्जेक्टिव है। तो टैरिफ पॉलिसी हैज बीन इन्वॉल्वड इन कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट एंड सीए। जो टैरिफ पॉलिसी बनाई गई थी इसके अंदर कंसल्ट किया गया था गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को एंड सेंट्रल एक्सिक्यूटिव बाय द नोडल एजेंसी। देन सजेशंस वर टेकन फ्रॉम सीईआरसी एंड स्टेक अदर स्टेक होल्डर, और सीईआरसी ने भी इसमें अपना कंट्रीब्यूट किया सजेशंस में, एंड स्टेक होल्डर जो अल्टीमेटली कंज्यूमर है, वो चाहे वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, फाइनेंशियल बैंक है, जिनका भी फाइनेंशियल स्टेक है, उन स्टेक होल्डर्स के भी प्रपोजल को, सजेशन को टेक केयर किया। Central Electricity Regulatory Commission and state regulatory commissions shall be guided by the tariff policy by fixing tariff for generation, transmission, distribution. तो आपका तीनों के लिए गाइडलाइन हो गई, जनरेशन के लिए भी हो गया, ट्रांसमिशन के लिए हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, और ये अनबंडल कर दिया गया था। पहले तो एक ही में था, तो कहाँ लॉस हो रहा है कहाँ नहीं हो रहा है, एक दूसरे की कागजों में खाना पूर्ति करते थे। अब ईच एंड एवरी कंपनी वाज मेड रिस्पॉन्सिबल, जनरेशन कंपनी का ये काम है, ट्रांसमिशन का ये काम है, डिस्ट्रीब्यूशन का ये काम है, एंड दे शुड बी ऑलवेज प्रॉफिट सेंटर, नॉट द लॉस मेकिंग। The aim of the policy is to ensure financial viability of the sector and attract investment, promote competition and efficiency, ensure availability of the electricity to consumer at reasonable rates, and promote transparency, consistency, and predictability in the regulatory purpose. The policy provides clearly on determination of the cross subsidy and additional surcharge for open access to consumers. आपके जो सब्सिडी है उसको भी डिटरमाइन करना इसका काम था पॉलिसी के हिसाब से, कि क्या सब्सिडी दी जाएगी और कितनी दी जाएगी। To promote competition and to the benefiting of the consumer, the policy provides that full future requirement of the power should be procured competitively except in case of the one-time expansion. पहले ही मतलब जिस समय जनरेटिंग सेट लगेंगे, सेटअप होगी कंपनी, उसी में पावर परचेज एग्रीमेंट साइन हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि वन टाइम जो है आपने साइन कर दिया कि मुझे इससे खरीदना है, और फिर आपका टाइम टू टाइम उसकी जो कमी है आपको बतानी है। इसलिए ट्रांसमिशन लाइन को भी आपने ना कर दिया कि भाई मैं इसको चूज करूंगा, तो आपका कॉम्पिटिटिव रेट पर वो आपको ट्रांसमिट कर रहा है जनरेटर कंपनी की जनरेटेड पावर को। तो ये आपका एक तरह का एग्रीमेंट पहले बन जाएंगे। टू फॉर्म ऑफ रेगुलेटर कंस्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और consistency in regulation in the area of distribution has been asked to decide the basic framework of service standards so that the standard regarding quality, continuity and reliability of service can be enforced. Reliability of service जो है ये नहीं कि आपने आप इंडस्ट्री सेटअप कर दी उस एरिया में, पता लगा कि वहां लोड शेडिंग होती है, तो हाउ यू विल इंश्योर द प्रोडक्शन, क्योंकि यहाँ पर बिजली ही नहीं है। तो स्टेक होल्डर जो है जिसने कि आपके इस पर एश्योरेंस पर वहां पर एक इंडस्ट्री सेटअप की, दैट पर्सन हैज द राइट टू गेट द इलेक्ट्रिसिटी 24/7 पूरे टाइम उसको बिजली मिलनी चाहिए, जिसकी वजह से उसने अपना पैसा इन्वेस्टमेंट किया, ये बात है। तो मल्टी लेयर टैरिफ आ गई, फ्रेमवर्क
ये 1 अप्रैल 2006 से शुरू हो गया। एंड कंटिन्यूड एंड प्रूवन इनएफिशिएंसी मस्ट बी कंट्रोल्ड एंड पेनलाइज्ड। कोई भी इनएफिशिएंट एरिया मिलता है, ये इनएफिशिएंसी किसी में मिलती है, तो इट शुड बी आइदर कंट्रोल्ड और उसको पेनल्टी लगाना है। यदि आप ग्रिड पर बार बार रहना क्वालिटी की पावर नहीं दे रहे हैं, तो जिससे ग्रिड डिसिप्लिन नहीं मेंटेन हो रहा है, ग्रिड ट्रिप कर जा रहा है, तो हैवी पेनल्टी शुड बी imposed on that indisciplined person. The Regulatory Commission would put a system to independent scrutiny of financial and technical data. They have also been called upon to encourage suitable local area based on the incentive and disincentive scheme. Incentive scheme देने से क्या होता है कि लोगों में एक ना मोटिवेशन रहता है। People, आप ऐसा करोगे तो इतना इंसेंटिव मिलेगा, तो पीपल स्टार्ट, क्योंकि हर एक को लोभ रहता है, मोटिवेशन का ये या लोभ रही है, तो एवरीवन पुट एफर्ट्स टू गेट दैट बेनिफिट व्हिच इज अवेलेबल। तो आपके जो इससे क्या है, लॉसेस का रिडक्शन होता है, और जो यूटिलिटी है वो चाहे वो स्टाफ की हो, वो ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन होती है, चाहे मैन मेटेरियल मशीन, सभी की ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन होती है और लॉसेस का रिडक्शन होता है। ये इसलिए है ना, ये इंसेंटिव स्कीम किया गया। जैसे पर्टिकुलरली थर्मल प्लांट के अंदर आपको शायद बताया होगा, ऑक्सिलरी पावर कंजम्पशन जो एक पैरामीटर दे रखा है कि ऑक्सिलरी पावर कंजम्पशन आपका इतना होना चाहिए, इतने परसेंट, जो आप जो जनरेट कर रहे हैं उसके इतने परसेंट आपको ऑक्सिलरी सिस्टम चलाने के लिए पावर का कंजम्पशन करना है। बट इफ यू आर एबल टू सेव समथिंग, देन देयर इज ए गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम है जो आपको इंसेंटिव देती है। मतलब जो आपने सेविंग किया है, दैट इज टू बी प्रोपोर्शनली डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू ऑल स्टाफ। तो जो ऑपरेशन का मेंटेनेंस का स्टाफ है, जो और जो सपोर्ट स्टाफ है, एचआर हो, चाहे मेटेरियल्स हो, चाहे कॉन्ट्रैक्ट डिपार्टमेंट हो, चाहे फाइनेंस हो, इन सबों को इस तरह वेजेस के अंदर जो है सैलरी मिलती है, उसके अंदर ये ऑन अकाउंट ऑफ ऑक्सिलरी पावर कंजम्पशन इंसेंटिव मिलता है। सेम इज द स्पेसिफिक ऑयल कंजम्पशन। यदि आपने ऑयल की कंजम्पशन को रिड्यूस कर दिया तो आपको इतने परसेंट आपको इंसेंटिव मिलेगा। तो इस तरह से ये इंसेंटिव स्कीम जो होती है, ये मोटिवेट करती है परफॉर्मिंग बेटर एंड बेटर। तो ये एक पॉलिसी के अंदर है बाकायदा। The policy lays down the time frame for the rationalization of electricity tariff and reduction of cross subsidies within a band of plus 20% by the end of 2010-11. It also down the formula, the computation of the cross subsidy. Consumer below the poverty line and consuming a small quantity of electricity shall continue to receive special support through cross subsidy tariff. तो ये तो जिस समय शुरू हुआ था 2006 में, उस समय ये बोला गया था कि भाई, लेकिन आगे इसको रिव्यू करने के बाद बोला कि ठीक है 5 साल के लिए और बढ़ा देंगे। मतलब 5 साल तक जो कंज्यूमर जिनके घर में एक बल्ब लगा हुआ है उनसे और पैसा नहीं लिया जाएगा। मतलब 30 यूनिट पर मंथ जो है उनको फ्री। एक माना जाता है कि एक बल्ब को एक झोपड़ी में लगाया हुआ है, तो जो उसकी जो कंजम्पशन है वो 1 यूनिट की है। 1 यूनिट की है, इसका मतलब ये है कि अब 30 यूनिट जो है वो उसको फ्री दिया जाए, गवर्नमेंट की तरफ से क्रॉस सब्सिडी दी जाएगी। उससे ज्यादा यूज करता है तो उसको ही पे बिल। जैसे अभी दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल ने किया रखा कि 300 तक फ्री बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए, तो जो लोगों का है उन लोगों को 300 यूनिट जो है फ्री। 300 यूनिट मतलब आपका 30 से डिवाइड कर दीजिए तो 10 यूनिट, और बढ़ते बढ़ते 10 यूनिट तक पहुंच गए। तो दिल्ली शहर के अंदर आपका खाली एक बल्ब तो नहीं होगा ना घरों में, तो आपका जो बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट चलाने के लिए चाहिए उसके हिसाब से 300 यूनिट उसने कर दिया है। तो टू प्रमोट एनर्जी एफिशिएंसी, टाइम differentiated tariff are to be put in place with 1 year for the large consumers 1 megawatt and above. For projects whose tariff is determined through performance-based cost of service regulation, the benefit of the reduced tariff after full depreciation of assets is to be made available to the consumer. जैसे मान लीजिए एक आपने जनरेटिंग प्लांट लगाया और आपने जो कैपिटल इन्वेस्ट की है उसका डेप्रिसिएशन, आफ्टर डेप्रिसिएशन बिकम द निल, then this benefit should be transferred to the consumer. You cannot keep on charging the capital expenditure from the consumer. Understood?
Arvind Kejriwal made this for the Rajghat Thermal Power Station. Rajghat Thermal Power Station, which is situated in Delhi. What he said is, this already completed its life, more than 37 years. Otherwise, coal plant ka 25 years life. When it is already performed for the more than 25 years, then the capital invested in that becomes a zero. So why you are passing this to the consumer for the as a fixed asset charge? So that's why this reduction in the tariff were lowered. No, came in the. This was the brainchild behind this. Any additional capital investment for renovation modernization is to be linked with the predetermined efficiency gains or for the sustaining high level performance. So if there is a power plant where the equipment needs some renovation, and renovation is a large scale renovation, modernization also. So that expenditure on account of the R&M is to be booked to the assets, and then you can charge the tariff. That way, person who is investing that amount for the upgrading of the machine is ultimately recovered from the consumer, but the efficiency would be improved. So this is the way how to fund is generated. Ultimately, you are passing it to consumer. So this is to be passed to the consumer, but it is also lure you to invest that amount for the capital investment. To promote non-conventional sources of energy, a minimum percentage of energy as set by the Regulatory Commission is to be purchased from such sources. 1st April 2006. The developers of the project are to be given adequate incentive to avail the benefit of the clean development mechanism. Clean development, again, if you are opting some measures for the saving of the environment, then some incentive would be given to you. The cost of the project will allow reasonable cost of the setting of the coal washes like this. Badarpur Thermal Power Station, located in Delhi of NTPC, when coal was used to come from the far from the coal mines. So earlier it was coming from directly from mines. So it was made to know you generally washed coal from for setting up the washery. Some amount was paid and the coal washery was set up and coal was transported. Before that it was washed. So this coal washery was clean. This is also clean development mechanism. So coal washery setup, this also given a to improve the quality of the coal, so that calorific value of the is not deteriorated. Otherwise, इसमें dust आएगा. The tariff for agriculture used to be fixed as to address concern. Agriculture के लिए tariff जो होता है subsidized होता है खेतों में farmer के लिए, तो उसके लिए भी rationalize करने के लिए बात हुआ. To promote energy efficiency, time differentiated tariff are to be put in place within 1 year for the large consumer megawatt 1 megawatt. So, if you are running your factory or industry during the night hours, so there is some incentive should be given, so that peak load is distributed. So this incentive for this in this. To improve the ability-based tariff, and this will also facilitate integration of captive generation plants with the grid. DLR Yes, please. અને સર્વે બધું 58 ગીપ અને પેલીમાં 35 થી ઉપર થાય. બધા મામલતદાર Hello. Is there any question, please? No, sir. I think Okay. there was some mistake. Okay. To give a choice for the supply consumer, there should be a choice from the consumer side from whom they want to purchase the. So this way I have tried to give a little bit idea of this complete. So anything, or shall I call the day?